गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप सभी का स्वागत है टारगेट विद डिस्कसर के स्पेशल सेशन में। और आज के सेशन की हम शुरुआत करना चाहते हैं एक बहुत ही डायनेमिक वीडियो के साथ। और ये वीडियो हमारे एक मित्र और सीनियर हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ का एक कॉलेज है, एफिलिएटेड कॉलेज बसंता कॉलेज ऑफ वीमेन। वहाँ पे ये डॉक्टर विशाल सिंह सर पढ़ाते हैं, जो इस वीडियो में आपको कंटेंट प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये जो आपका टीजीटी का एग्जाम आगे आने वाला है, पीजीटी का एग्जाम आगे आने वाला है, एलटी जीआईसी जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उनके बहुत मेजर सेक्शन को इनका वीडियो का ये इंट्रोडक्टरी क्लास है जो कवर करता है। और अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे ये आने वाले समय में आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ बहुत ही स्पेशल मटेरियल लेकर आ रहे हैं। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर आगे समझते हैं, बात करते हैं। Hello, dear learners. Greetings and welcome to this course. I am Vishal Singh, Assistant Professor in the Department of English at Vasanta College for Women, Rajghat, Varanasi, admitted to the privileges of Banaras Hindu University. It gives me great pleasure to introduce our 8-week course, Understanding Literary Genres and Devices. Dear learners, I welcome you all in this 8-week course. This course has been designed in collaboration with Professor Manjari Jhunjhunwala, Head Department of English, Vasanta College for Women, Rajghat. Dear friends, it is a 2-credit program comprising 40 lectures, each approximately 30 minutes in duration. Though duration of lecture may vary from lecture to lecture. This course is designed for a clear and structured understanding of major literary genres and essential literary devices that support learners at both undergraduate and postgraduate levels. It is a well thought out course that aims not only for the students of English literature, but also for every passionate learner who wants to know why the impression of literary work stays and how it manages to make us laugh, cry, or think so deeply. This 8-week course is structured into 8 comprehensive modules, each consisting of 5 focused lectures. Talking about Module 1, it introduces the foundations of literature, covers the nature of literature and literary studies, the concept of text, methods of close reading, the idea of genre, and overview of literary classification from Aristotle to postmodernism. We'll try to cover it in Module 1. Moving forward in Module 2, it focuses on prose as a literary form. It offers an introduction to prose, its definition, types, and scope, along with detailed discussion of major prose forms such as the essay, biography, autobiography, travelogue, memoir, diary writing, and letter writing. Module 2 completely focuses on prose as writing. Module 3 explores fiction as a literary form, examines the essential elements of fiction, the structure and nature of the short story and novella, novel. And narrative modes such as parable and allegory will also be discussed in Module 3. Module 4 deals with the novel as a literary genre. This module traces the novel as a long prose narrative, its evolution from romance to realism, early narrative traditions, the Gothic, domestic, and romantic imagination, and the emergence of the novel of growth, society, and mind. Moving forward in Module 5, we will discuss. It will be completely dedicated to poetry as a literary form. Learners will study the meaning, origin, and the nature of poetry, essential poetic elements, major poetic forms, its styles, movements, and schools, along with thematic and stylistic analysis for effective appreciation of poetry. Module 6 examines drama as a literary genre, introducing its nature and origins, major dramatic elements and devices, that the historical development of drama, and the key types and sub-genres within dramatic literature. आप सभी सुन रहे हैं ना? मैं आप सभी से प्रश्न पूछूंगा इसको सुनने के बाद कि किस मॉड्यूल में क्या पढ़ाया जाएगा। तो लिसन इट वेरी केयरफुली, बहुत काम की चीज है आप सभी के लिए। Literature. Yes, sir. We'll yes, try sir. to focus on this, how drama is a collaborative art. Then Module 7 focuses on literary devices,
and techniques, offering a clear understanding of literary devices, their functions, and classification. It further covers imagery, figurative language, sound and rhythm, symbolism, irony, allegory, and key dramatic devices that enrich literary expression. Further, in Module 8, we'll conclude with practical criticism from reading to interpretation. This module covers the scope of practical criticism, the method of close reading, and practical approaches to analyzing poetry, prose, and drama. The course objective of this course is in order to introduce learners to major literary genres, different form of writing, or to develop the ability to read, analyze, and interpret literary text, to familiarize students with important literary devices and techniques. Also will focus on to strengthen skills of close reading and critical appreciation, to build analytical competence through practical criticism. Talking about the target audience, target learners for this course is designed to support undergraduate and postgraduate students of English literature, including learners from both regular programs and at the same time the NEP 2020 batches. It will also be highly useful for students enrolled in AEC, Ability Enhancement course, and SEC, Skill Enhancement courses. Importantly, the course is not limited to students of English literature alone. Anyone with an interest in reading literary or non-literary texts and in exploring how meaning is created, how meaning is generated, will benefit from it. I warmly invite you to join this journey of understanding literature and its diverse devices. Let's learn together, let's grow together. The course will conclude with an MCQ based examination also. I, with my team, will be available on the discussion forum to address your questions, queries, doubts, observation. Upon successful completion of this course, you will also receive a course certificate. So I hope you will enjoy journey of learning, journey of growing together. And I invite you to join this course. Thank you so much for joining. Best wishes and happy learning. Thank you. चलिए, तो आप लोग हैप्पी लर्निंग हो रहे हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को? दोस्तों, क्या आप अपना टाइम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे वेस्ट कर रहे हो? इसी वक्त बंद कर दो टाइम पास करना, अगर आपको भी चाहिए एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम। दोस्तों, मैं ऐसे अरे ये क्या हो गया भाई? सो आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? मेरी आवाज जा रही है आप सभी को? आप बोल सकते हैं एवरीवन, यू कैन स्पीक। यस यस आज की क्लास आप लोग की है, सबकी क्लास है, यू कैन स्पीक। तो ये आपने देखा सभी लोगों ने कि क्या था इसमें। ये एक्चुअली आप सभी लोग जैसे हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कई लोग का पेपर नहीं हुआ, अच्छा हुआ। देखिए होता क्या है कि हम सभी मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई चाहता है कि उसका पेपर खराब हो जाए, लेकिन हम कितना भी चाह लें, कई बार हमारे भाग्य में चीज़ें न लिखा हो, हम कितना भी मेहनत कर लें, चीज़ें नहीं हो पाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा गड़बड़ी होगा, नहीं हो पाया, आपने मेहनत किया, हम मानते हैं नहीं हो पाया। हम देख रहे हैं कि जब से पेपर हुआ है तब से मुझसे लगातार जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोग कि टीजीटी के लिए भी सर कुछ करिए, हमारे लिए भी कुछ करिए सर, क्योंकि आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने एलटी की परीक्षा ही नहीं दी, क्योंकि वो मेंस तक नहीं जाना चाहते। उनको लग रहा है कि यहाँ अभी बहुत दिक्कत है, प्री होगा, मेन होगा, पता नहीं हमारा होगा कि नहीं होगा, तो डर रहे हैं लोग। तो ज़्यादातर जो उम्र दराज लोग हैं वो ज़्यादातर लोग डर गए इस एग्ज़ाम से, और उन्होंने परीक्षा दी नहीं, या दिए भी तो आधे मन से दिए और उनका ये पेपर अच्छा हुआ नहीं। अच्छा, इसके अलावा और भी ढेर सारे लोग थे जो कि बड़े ही अच्छे थे पढ़ने में, लेकिन एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का प्रारूप ऐसा है कि निगेटिव मार्किंग है, वो भी 1/3 है, तो इससे बड़ा नुकसान हुआ है। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं, मैंने बताया था ना, कई बार क्या होता है कि हम कम क्वेश्चन करके आए तो भी मामला फंस जाता है, ज़्यादा करके आए तो भी फंस जाता है, क्योंकि आपने ज़्यादा किया, आपके ज़्यादा गलत हो गए तो भी आप कम हो गए, आपने कम किया और कम में भी आपका गलत हो गया तो भी आप बाहर हो गए। तो इस तरह से बहुत से लोग हैं, और इस तरह से हो जाता है बहुत बार, आप चाहे जितना चाह लें। तो उनके लिए अब क्या ऑप्शन है, क्योंकि उनके अगर कट ऑफ में नाम नहीं आ पाता है तो भाई आगे तैयारी करनी होगी।
हर किसी ने कहीं न कहीं बहुत पंगे लेके तैयारी कर रहे हैं आप लोग, स्पेशली महिलाओं की मैं बात करूँ तो। मैंने देखा है, कोई अपने घर से बड़ी फैमिली है किसी की, तो उसने झगड़ा कर लिया कि नहीं, क्योंकि उसको लग रहा था वहाँ नहीं हो पा रहा उसकी पढ़ाई-लिखाई, क्योंकि वो फैमिली में बिज़ी रहता है। तो उसने अपने हस्बैंड के साथ वो अलग आके महिला रहने लगी कि चलो, अब इतना पंगा लिया और पता चले कि इंटीग्रेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ। ऐसे आप में से बहुत से लोग हैं, मेरे परिचित में तमाम ऐसे लोग हैं, जिनको मैं जानता हूँ। पू कई ऐसे मेल हैं जो तैयारी करने के लिए अपने घर को छोड़कर कहीं बाहर आके रूम लेके रह के पढ़ रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो पाया। तो ये जो दिक्कतें हैं जिसकी वजह से आप किसी कारणवश नहीं हो पाए, आप पढ़ने में अच्छे थे, आपको खुद पे भी भरोसा नहीं हो पा रहा है कि ऐसा कैसे आपके साथ हो गया। निश्चित तौर पे मैं ऐसे जो भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो हमारे बैच में हो या कहीं और के कैंडिडेट हो, मैं उन सब के लिए बहुत दिल से जो है सहानुभूति रखता हूँ। और उन सबको बस एक ही बात कहूँगा कि जीवन का दौर है, चलता रहता है ना? कभी हमारे जीवन में ज़्यादा दुःख तो कभी सुख आते रहते हैं, और अभी ये दुःख का समय है, दुःख की मंजर चल रहे हैं, थोड़ा-सा कष्ट सह लीजिए। निश्चित तौर पे आपके जीवन में कुछ बेहतर उजाला आने वाला है, कुछ आप बेहतर करने वाले हैं। थोड़ा-सा धैर्य रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, अपने हिम्मत को मत टूटने दीजिए। निश्चित तौर पे आपके भी जीवन में उजाला आएगा, आप कुछ बेहतर करेंगे। शायद ये एग्ज़ाम में इसलिए आपका नहीं हो रहा है कि आप कुछ ज़्यादा बेहतर करने वाले हैं। नहीं, अभी प्रेमलता ऑफ़िशियल आंसर की नहीं आई है। एक्चुअली मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि कई ऐसे एस्पिरेंट्स हैं दूसरे भी कोचिंग में, अन्य जगहों पे भी, और जो हमारे जानकार में हैं। तो अब ये है कि वो लोग हिम्मत हार नहीं जाते हैं कि भई हमारा तो उतना ज़्यादा नहीं हो पाया, तो सर मेरा क्या होगा? हो सकता है उनका हो भी जाए, क्योंकि कट ऑफ का तो मैंने बता दिया ना कि मैं तो सबसे कम ही कट ऑफ बताया हूँ। उसके आस-पास वो हैं, लेकिन बात ये है कि कई बार ऐसा होता है कि आयोग गड़बड़ी कर दे या और कई चीज़ें हैं। अब हम आपको हर चीज़ नहीं बता सकते। पिछली बार टीजीटी एग्ज़ाम में ऐसे ही हुआ था कि हमने कट ऑफ का अंदाज़ा लगाया था, लेकिन क्या हुआ, अचानक 100 प्लस वाले बच्चे कहाँ से 100 लगभग 100 डेढ़ 100 बच्चे कहाँ से घुस आए वो हमें पता ही नहीं चला। वो आज तक हम नहीं जान पाए। तो दिक्कतें हैं। बहुत सी चीज़ों पे आप एकदम से, जहाँ पे आपका वो नहीं है, कंट्रोल नहीं है, और पेपर का जो लेवल आया है, इन्होंने जानबूझ के कुछ चीज़ें बहुत ईज़ी कर दी, तो उसमें क्या होगा भगवान जाने। लेकिन ये है कि जो लोग एकदम से जिनका कम है, मतलब ऐसे लोग जो कि 70 के आस-पास में हैं, उन लोग के लिए तो थोड़ी दिक्कत का विषय है ना, उनको तो डर लगेगा निश्चित तौर पे, क्योंकि 70 के आस-पास जो लोग हैं उनके लिए डर है। मैं आपको 75 तक आश्वस्त कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप 70 पे हैं तो निश्चित तौर पे थोड़ा-सा खतरा है, और जब तक आंसर की नहीं आता तब तक आप एक फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुँच सकते। तो बेहतर ये है कि आप टीजीटी, पीजीटी की तैयारी स्टार्ट कर दें अपना, और अगर कहीं आपका नाम आ गया तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आप कम से कम, आपको इस बात का दुःख नहीं होगा कि आपने समय बर्बाद किया। दूसरी बात ये है कि डिप्रेशन में रहें, परेशान ना रहें, इसकी बजाय बेहतर है कि हम एक नए कदम को आगे बढ़ाएँ, आगे चलें, काम करें, ठीक है? तो इसीलिए ऐसा आप में से जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका 70 से कम है, अगर किसी का है, तो निश्चित तौर पे उन्हें अब टीजीटी की तैयारी पे लग जाना चाहिए, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी पे। अगर 70 से ऊपर है, तो आप थोड़ा-सा पेशेंस रख सकते हैं, थोड़ा-सा अपने मन में विश्वास रख सकते हैं कि आपके चांसेज़ हैं। लेकिन अगर 70 से कम है, तो मेरे ख़्याल से ऐसे कैंडिडेट को जो है निश्चित तौर पे अब उधर विश्वास न रख के अपनी टीजीटी, पीजीटी की तैयारी पे लग जाना चाहिए। आई होप, और मैं इतना दिलासा दे रहा हूँ कि आप सभी लोग जो है बिल्कुल पेशेंस ना खोएँ। निश्चित तौर पे आप सभी को जो है मैं टीजीटी में 100% सेलेक्ट करवा दूँगा, कहीं कोई डाउट नहीं है। बस ये है कि आपको लगना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अब आप में से यदि कोई कुछ कहना चाहता हो तो कह सकता है, लेकिन अभी हम थोड़ा-सा एक बात और बता दें, फिर हम आप पे बात करेंगे कि जो ये तैयारी करनी है, सपोज़ करो कि आप टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप तैयारी करने जा रहे हैं एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम की,
दोनों प्रकार की जो तैयारी करनी है, क्योंकि एलटी ग्रेड का एग्जाम आने वाला है, मेंस होने वाला है, जीआईसी का जो है आपका प्री अभी होना बाकी है। तो अगर आप में से जितने भी लोग जो जीआईसी का फॉर्म भरे हैं, आप लोगों ने देखा कि हमारे नोट्स, हमारा मटेरियल आपको कितना हेल्प कर रहा है। हम जीआईसी का मटेरियल कोशिश कर रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर रेडी कर लें। तो जीआईसी का मटेरियल आपको मिल जाएगा और आप जीआईसी पे काम करना शुरू कर सकते हैं। तो ये आप जीआईसी पे लग सकते हैं, मैं आप सभी से ये कहूँगा। प्लस आप यूपी टीजीटी पे, पीजीटी पे भी अपनी बहुत अच्छे से आप फोकस करना शुरू कर सकते हैं। जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आती है, तब तक आप अपने तैयारी को, अपने प्रयासों को एक दिशा में लेकर जाएं। और तब तक के लिए मैं आप सभी से बताना चाहूँगा कि ऐसी क्या कॉमन चीज़ है जो आप सभी पढ़ें, सभी तैयार करें कि आप लोग बेहतर स्थिति में रहें। तो अभी एक छोटा सा मैंने आप सभी को वीडियो दिखाया है। अब उस वीडियो से रिलेटेड पहले मैं कुछ बातें कर लूँगा और प्लस आपको उसका क्या लाभ है, जो एक कोर्स हमारे मित्र लाने वाले हैं, उससे क्या बेनिफिट होगा, हम उस पर थोड़ा बात कर लें और फिर उसके बाद हम और कुछ मुद्दों पे बात करेंगे। तो अभी आप सभी बताएं, जो आप लोगों ने वीडियो देखा, उस वीडियो से क्या समझ में आया? कोई कैन एनीवन टेल? विजय लक्ष्मी आप बताइए, अभी जो आपने एक वीडियो देखा 5 से 7 मिनट की, हम बात करते हैं सचिन जी एक एक चीज पे, तो उससे क्या समझ में आया आपको? वो वीडियो क्या हेल्प कर सकता है आपको, बताइए। विजय लक्ष्मी जी, आर यू लिसनिंग? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए। सर, वीडियो से उन्होंने स्ट्रेटजी, मॉड्यूल वाइज स्ट्रेटजी कुछ बताई कि कैसे कैसे प्रिपरेशन, क्या मतलब कराना है, क्या कैसे करने, और मॉड्यूल वाइज मींस उन्होंने डिटेल उसका दिया कि कैसे कैसे नॉन फिक्शन या फिर सबसे उनको कवर करना है ये सब। हम्म तो आप में से कोई बता सकता है कि मॉड्यूल 1 में क्या कवर कराएंगे सर? या मॉड्यूल 2 में क्या कवर कराएंगे? कैन एनीवन टेल? मॉड्यूल 6 में क्या है, कौन बताएगा? मॉड्यूल 6 में क्या है? चलिए कोई बात नहीं है, अभी आप देखिए। आप सभी को पता है कि ये जो आपका सिलेबस है, उसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है लिटरेरी टर्म्स, फॉर्म एंड मूवमेंट। ठीक है, आप अभी ध्यान दें, ये आपका एक बहुत बड़ा सेक्शन है और एग्जाम में आ रहा है, आप सभी गड़बड़ कर दे रहे हैं। तो मेरे मित्र हैं, मेरे सीनियर भी हैं ये, और इन्होंने ये स्टार्ट कर रहे हैं, तो इन्होंने मुझसे कहा कि आप अपने, अगर आपके स्टूडेंट्स के लाभ का हो सकता है तो आप उन्हें ज्वाइन कराइएगा, बहुत सही रहेगा। तो हमने कहा ठीक है सर, चूंकि एक भी पैसा लगना है नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कोर्स है ये। और आपको फ्री में सारी चीजें मिल रही है, तो यू ऑल शुड ज्वाइन इट, है ना। अब यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे क्या स्क्रीन आप लोग को क्लियर है कि आई शुड मेक इट लार्जर? एक मिनट, इसको मैं बड़ा कर सकता हूँ स्क्रीन को। यस आई कैन, यस। चलिए, अभी शायद पहले से बड़ा हुआ, अभी शायद पहले से बड़ा हुआ है। यस, अब और बड़ा हो गया है। अच्छा, ये इधर की ओर में भाग गया क्या? अब इधर नहीं आएगा? आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो कोई नहीं। ये देखिए, आप लोग को दिख रहा है क्लियरली? वीक 1 आप लेफ्ट साइड में देखें, वीक 1 ये इनका प्लान है। ये शायद फरवरी में शुरू हो रहा है, मिड फरवरी में ये आपका कोर्स शुरू हो रहा है, और ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये जो है, आप अब जब इसमें रजिस्टर कर लेंगे तो आपको एकदम एप्लीकेशन की तरह काम करेगा। आप वेबसाइट पे जाएंगे और वहां पे जाके लॉगिन करेंगे, और जो टाइमिंग होगी उतने समय ये वीडियो अपने आप वहां पे लाइव चलेगी। और जब आप लाइव के बाद अगर बाद में देखना चाहें तो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, और वहां से आप देख सकते हैं। सबसे पहला देखिए, वीक 1 में ये जो 1 हफ्ते का सिलेबस है, उसमें ये क्या पढ़ाने वाले हैं? फाउंडेशंस ऑफ लिटरेचर। इसमें आपको बहुत बढ़िया से बताया जाएगा, एरिस्टोटल से लेके अब तक लिटरेचर का पूरा इतिहास क्या रहा है। जैसे आप अभी लोग देख रहे हैं ना, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, छोटे छोटे लेवल पे आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बेसिक लेवल के लेक्चर्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। पूरे वीक 1 में सारी चीजें बताई जाएंगी।
तो आपको एक लिटरेचर की बहुत अच्छी समझ बनेगी, और एक लिटरेचर पे ये कह सकते हैं आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास है, ठीक है। उसके बाद से जो दूसरी क्लास होगी ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्रोज एज अ लिटरेरी फॉर्म। पूरा एक हफ्ते आपको प्रोज पे लेक्चर दिया जाएगा, नॉन फिक्शन, जैसे आप सभी ने बहुत अच्छे से, मैंने 2-2.5 घंटे का लेक्चर लिया था ना, आपने पढ़ा है, जैसे बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, शार्ट स्टोरी, डायरी हो गया, ममायर हो गया। तो ये सारी चीजें आपको, जितने भी प्रोज के लिटरेरी फॉर्म है, ऐसे हो गया, वो सारी चीजें आप इसमें पढ़ेंगे इन डिटेल। जो आपका तीसरा वीक होगा, इसमें आप फिक्शन एज अ लिटरेरी फॉर्म पढ़ेंगे, यानी नावल, शॉर्ट स्टोरी और उसके जितने भी एलिमेंट्स वगैरह हैं वो सब यहाँ पे आप पढ़ेंगे। तो ये भी बहुत बेहतरीन है। जो वीक 4 है आपका, ये द नावल एज अ लिटरेरी फॉर्म, ठीक है। तो यानी फिक्शन वाले में ओवरऑल आपने पढ़ा, और फिर वीक 4 में आप स्पेशली नावल पे फोकस करेंगे। तो ये भी बहुत बेहतरीन है। फिर आप जब वीक 5 में आएंगे तो पोइट्री एज अ लिटरेरी फॉर्म आप पढ़ेंगे। तो बहुत बेहतरीन सिलेबस है ये। डॉक्टर मंजरी झुनझुनवाला जो हैं, ये वहाँ पे बसंता कॉलेज ऑफ वीमेन, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, उसकी ये एचओडी है इंग्लिश डिपार्टमेंट की, ये पढ़ाएंगे। आप लोगों को निश्चित तौर पे बहुत फायदा होने वाला है। और फिर उसके बाद से ड्रामा एज अ लिटरेरी जॉनरा, ये जो है फिर विशाल जी पढ़ाएंगे, डॉक्टर विशाल सिंह आपको ड्रामा को। और फिर लिटरेरी डिवाइसेस एंड टेक्निक, कितना बेहतरीन क्लास है, पूरा आपको लिटरेरी डिवाइसेस एंड टेक्निक मिलने वाला है। यानी जितने भी मेजर लिटरेरी डिवाइसेस हैं, चाहे वो ड्रामा में हो, प्रोज में हो, उस पर बहुत अच्छे से बात करी जाएगी डॉक्टर मंजरी के द्वारा। और सबसे लास्ट में प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी आप पोएम को रीड कर रहे हैं तो उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, या किसी प्रोज वर्क को, लिटरेरी प्रोज को पढ़ रहे हैं तो उसे आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे। तो वो सारी चीज़ें आपको जो है लास्ट वीक में मिलेगा। अब ये आप सभी के लिए बहुत बड़ा फाउंडेशन का काम करेगा। जो आपका एलटी ग्रेड यदि आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो भी आपको ये वाला सेक्शन जब आप तैयार कर लेंगे तो आप ये समझ लीजिए लेक्चर्स आपके अंदर उस लेवल की वैल्यू भर देंगे कि चाहे जैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, आप बहुत बेहतरीन जवाब दे सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है साथ ही साथ जो है आपकी पकड़ बहुत अच्छी मजबूत होगी। अगर आप टीजीटी, पीजीटी या जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं जिसका एग्जाम नहीं हुआ है, तो उन लोग के लिए भी बहुत बेहतरीन ये अवसर है कि आप लोग को ये पूरा 8 हफ्ते का शेड्यूल है, यानी इसका मतलब 2 महीने का शेड्यूल है। और निश्चित तौर पे अभी कोई भी एग्जाम आपका 2 महीने में नहीं होने वाला है। तो ये आपको बहुत बेहतरीन दिशा में आपको लेकर जाएगा ये। और आप जो बेस को लेके बड़े परेशान रहते हैं या कहते हैं आपने किसी बड़े प्रोफेसर से नहीं पढ़ा, तो उस तरह का आपको अब मटेरियल और उस तरह का लेक्चर आपको मिलने जा रहा है। तो कैसा लगा आप लोग को बताइए, आनंद आएगा आप लोग को। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि ये जो साइन इन रजिस्टर का यहाँ पे सिंबल है, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये लिंक मैंने आप लोग को आपके टेलीग्राम ग्रुप पे भेजा है। आप बिना किसी देर के आप लोग तुरंत इसे साइन इन रजिस्टर कर सकते हैं, ताकि ये काम का अभी निपटा लें। देखो ये लिंक आप लोग को आपके व्हाट्सएप पे दिख रहा होगा। मैं फिर से आपको सुपर फास्ट रिवीजन बैच में लिंक भेज दे रहा हूँ, और वहां से आप इसे जाके तुरंत अभी रजिस्टर कर लें, बिल्कुल देर ना करें। आप में से कितने लोग कर चुके हैं? जो कर चुके हो मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा कि आपने कर लिया है। मुझे अच्छा लगेगा कि हमारे मित्र हैं, अगर इन्होंने कहा है तो इनके लिए, और प्लस ये आपके लिए फायदेमंद चीज़ है। अगर कोई भी मुझे लगता है बेकार की चीज़ है तो मैं आपसे कहता ही नहीं, लेकिन ये बहुत सही चीज़ है, तो आप सभी के लिए बहुत फायदेमंद है ना। अभी इसे आप सभी लोग कर लें। हाँ देखो रुचि बता रही है कि ये जानती हैं डॉक्टर मंजरी को। सी हैज टेकन हर वाइवा वाइस, हर वाइवा वास एंड गिव आइडिया टू कैटेगराइज माय चैप्टर्स ऑफ थीसिस। क्या चाहिए भाई रुचि? ठीक है रुचि ना, आपकी मैडम पढ़ाने जा रही हैं, हाँ? आपको इतना हेल्प की है तो आगे भी आपको हेल्प थोड़ा कर देंगे। तो हाउ मेनी ऑफ यू हैव रजिस्टर्ड? रुचि आपने रजिस्टर कर लिया है? आप रजिस्टर करना बहुत आसान है, मैं आप सभी को दिखा दे रहा हूँ। आप सभी के साथ मैं भी रजिस्टर करता हूँ। आप सभी लोग मेरे साथ इसको 1 मिनट में रजिस्टर कर लें। देखिए आप देखिए साइन इन बोल रहा है, सभी को स्क्रीन पे दिख रहा है। ऊपर जाएंगे आप तो देखिए साइन इन, राइट साइड में ऊपर टॉप पे साइन इन है।
तो मैं देखो ये आपको क्लिक किया हूँ। अब क्लिक करने के बाद ये कह रहा है कि साइन इन विद योर ईमेल आईडी। आप अपने ईमेल आईडी के साथ अपना ईमेल आईडी अपना पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद आप इसमें साइन इन कर सकते हैं। लेकिन साइन इन डायरेक्ट नहीं होगा, आपको पहले साइन अप करना पड़ेगा। तो ये साइन अप जब आप करेंगे तो आप देख लें, साइन अप में आपसे ईमेल आईडी मांग रहा है, आपसे पासवर्ड मांग रहा है, और पासवर्ड आप अपने हिसाब से कुछ भी दे दीजिए। जैसे आप सपोज करिए कि मैं अपना एक ईमेल आईडी आप सभी के सामने करके दिखा दे रहा हूँ, और ये कुछ देर का कुछ सेकेंड का प्रोसेस है, तो फटाफट हो जाएगा। मान लीजिए मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया और तुरंत इसको कर लेते हैं, एक मेरा काम है। तो ये अपना मैंने ईमेल आईडी डाल दिया और यहाँ पे जो है आप देखिए 15 आप लोग भी करिए मेरे साथ अगर कर सकते हो तो। और फिर उसके बाद से जो है ये हो गया आपका gmail.com। तो ये हमने अपना ईमेल आईडी डाल दिया। पासवर्ड हम इसके हिसाब से अपना कुछ बना लें, तो आप लोग अपने हिसाब से चूज योर ओन कर सकते हैं। तो हमने अपना पासवर्ड बना लिया, स्वयं का है, तो स्वयं कुछ भी कर लीजिए आप लोग। मैंने अपना बना लिया ये पासवर्ड, ठीक है। फिर ये आपका जो है, फिर हमने कर लिया स्वयं। 1 सेकेंड लगेगा, कर लें आप लोग इसे भाई प्लीज। स्वयं @123 ये हो गया। अब हमने क्रिएट अकाउंट, ये हो नहीं रहा क्या? अच्छा मैच ही नहीं कर रहा मेरा पासवर्ड, क्या हो गया? सेम आपको डालना है, स्वयं हो गया। तो देखिए यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, अब मेरा यूजर जो है क्रिएट हो गया है। अब आप जो है वहां से आपके मेल पे एक कुछ हो जाएगा। नहीं पासवर्ड आप अपना बनाएंगे, नया पासवर्ड डालेंगे, नया पासवर्ड आप बनाएंगे। नया पासवर्ड आप कोई भी बना लीजिए, इसके लिए बनाएंगे। आप अपना ईमेल आईडी सेम डालेंगे, पासवर्ड आप कोई नया बनाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए मेरे ईमेल आईडी पे आ गया होगा। देखिए आजकल लोगों के अंदर ना पेशेंस नहीं है। मैं देख रहा हूँ अभी 35 लोग थे, अब पता नहीं ये 3-4 लोग को लगा रहे हैं सर क्या करवा रहे हैं। अरे भाई कोई काम की चीज आप सीखोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा ना, तो यू शुड हैव पेशेंस। अगर पेशेंस नहीं तो जीवन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बस भागते ही रहेंगे इधर से उधर, यहाँ से जाके उधर भागिए, वो भागते रहिए, जीवन इसी में चला जाएगा। तो ये चीज है। अब लिंक आएगा आपके पास ईमेल आईडी पे, और जैसे लिंक आएगा आपको लिंक पे क्लिक करके जो है वेरीफाई कर लेना। फिर उसके बाद आपने जो यूजर आईडी पासवर्ड बनाया है उसी यूजर आईडी पासवर्ड से आप जो है इसमें लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। मेरे में तो अभी आया नहीं। तो अंजलि जी आप बताइए आपने कैसे किया? आपका हो गया एकदम? आपका हो गया अंजलि जी? कैसे आपने किया है? यस सर, कर लिया। साइन अप किया था मैंने और उसके बाद में फिर उनको ज्वाइन कर लिया। ईमेल अपनी पूरी आईडी क्रिएट करनी होती है, पूरी डिटेल डालनी होती है सारी। जैसे डिटेल जितना हमने डाला उतना है, तो कि उसके बाद फिर और सर यही जब आप मेल खोल रहे हैं ना, हाँ तो ये इस आ गया, मेल में एक लिंक दिया आ हुआ गया, है। आ गया। देखिए लिंक देखिए, दिया हुआ, इसे क्लिक कर दीजिए। अच्छा इसे मेल पे लिंक जो दिया इस पे हम क्लिक कर दें। इसे क्लिक कर दीजिए। कर दिया हमने। ओके, अब मेरा ईमेल वेरीफाई हो गया। हाँ, ये अब मैं वहां जाऊंगा, अब आप यूजर वहां जाएंगे तो साइन इन करेंगे। अच्छा यहाँ पे अब हम जो हमने मेरा हाँ, जो अभी आपने बनाई है उसी को आप इसमें सेट कर दीजिए और साइन इन कर लीजिए। ओके ओके, बहुत अच्छा भाई, आप लोग तो एडवांस हैं। आप वैसे भी अपने यहाँ कंप्यूटर डिपार्टमेंट देखती हैं क्यों अंजलि जी? जी सर। स्वयं 123। अब तो मेरा सब जान गए हैं सब, कोई बात नहीं। अब यहाँ से साइन इन हो जाएगा। तो बहुत आसान प्रोसेस है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं है।
अच्छा यानी ज्वाइन कर लीजिए, अब ज्वाइन हो करिए अभी भी अच्छा ये ऊपर। क्लिक ओहो हाँ। अच्छा ये ज्वाइन लिखा है ना, इस पर क्लिक करें। ओके और इसमें ग्रेट। अपनी डिटेल फिल करिए। अच्छा फिर डिटेल, अच्छा ये अब डिटेल फिल करना है ना। ओके ग्रेट ग्रेट। तो आप सब लोग समझ गए हैं भाई, यानी ज्वाइन करने के बाद आपको अपना डिटेल फिल करना पड़ेगा, और डिटेल फिल कर लेंगे तो सारी इंफॉर्मेशन चली जाएगी, है ना। डिटेल में कुछ विशेष तो नहीं है सर? नहीं सर अच्छा कुछ भी हैक होने वाला नहीं है। अच्छा कुछ है क्या? चलिए वैसे भी बहुत बड़ी, स्वयं आपको पता है ना, भारत सरकार की वेबसाइट है सर ना। मैंने इसे दूरदर्शन पे इसके कई सारे कोर्सेज देखे थे, इसलिए मुझे हम्म, ये तो पता था कि ये काफी ऑथेंटिक नॉलेज देते हैं। हम्म। तो बहुत आसान है, अब आप लोग को बस मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग भी डाल लीजिएगा। आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, अपना ईमेल आईडी पहले से आ गया, डीओबी डालेंगे, आप अपना जेंडर डालेंगे, और उसके बाद से अपना स्टेट डालेंगे, आप वो भी चुनना ही है, हाँ? तो आपका ये हो गया, स्टेट हो गया, फिर उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, वो भी चुनना ही है ना। तो अब तो मैं गौतम बुद्ध नगर का हो गया हूँ, तो गौतम बुद्ध नगर डाल दिया। फिर प्रोफेशन डालना है, तो मैं तो मान लीजिए फैकल्टी हूँ। ओके। फिर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो डालना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद से ईयर ऑफ ग्रेजुएशन डालना है। फिर एकेडमिक, अच्छा बैंक ऑफ क्रेडिट, अच्छा ये अपार वगैरह है ना आपके पास सर है मेरी कि? अपार आईडी नहीं बनी थी, तो फिर मैंने तुरंत ही बनाई और उसके बाद में इसे सेट तो किया ये है। अपार आईडी तुरंत बन सकता है कैसे? अच्छा यहाँ लिखा है। हाँ सर, ये क्या लिखा है, क्लिक है। अरे देखो कितनी बढ़िया बढ़िया चीज, जब आ, बड़ा काम करते हैं आप तो आपको सब कुछ मतलब सीखने को मिलता है ना। अपार आईडी यहाँ से बन जाएगी, है ना। ओके। फिर वो आईडी बन जी जाएगी तो सर। पढ़ेगा, फिर पार्ट ऑफ स्वयं लोकल चैप्टर, तो ये तो नो हो जाएगा, हाँ? फिर आप जो है कॉलेज लेवल स्टेट बता देंगे, है ना। तो ये सारा डिटेल आप सभी डाल लेंगे, मैं उम्मीद करूं कि आप लोग इसे कर लेंगे। ये तो बाद का है, पहले आप ज्वाइन कर लो, फिर ये डिटेल डाल दो। इससे क्या होगा कि वो भारत सरकार को भी अपने पास रिकॉर्ड रखना रहता है ना, या इन लोग को, तो ये आपका रिकॉर्ड ये यहीं सर से उनके सेव भी पास। करना होगा सारा डिटेल इसी में। हाँ फिर आपका ये सेव हो जाएगा। ठीक है। तो ज्वाइन कर लिया विजय लक्ष्मी ने, चलिए बहुत अच्छा। अब हम इसको बाद में भी आके भर सकते हैं ना अंजलि जी? हाँ सर, बाद हाँ में भी कर सकते हैं। अच्छा, जब तक पर भरेंगे आप नहीं तब। ज्वाइन अगर आप ज्वाइन हो जाएंगे ना, तो आपका सारा डिटेल मिल जाएगा। उसके बाद में ये शायद फिर लास्ट में आपको नोटिस वगैरह देते रहेंगे जैसे इनकी क्लास हाँ स्टार्ट जब होंगे। क्लास चलेगी एवरीथिंग सब बता दिया जाएगा, है ना। जी ये सर। बात है। जो ज्वाइन किया रहेगा उसी को सारा मैसेज वगैरह आता रहेगा, है ना। चलिए हाँ, ये तो क्योंकि आपकी बहुत मेल एनरोल हो जाएगी तो उसी पे सारी मेल्स वगैरह भेजते रहेंगे। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया है भाई, ये तो बहुत अच्छी चीज है, और ये आप लोग को बहुत काम की चीज है। आप लोग इसे निश्चित तौर पे करिए। ऐसे मौके मिलते नहीं है भाई, इन्होंने कहा तो हमने कहा भाई आप लोग को फ्री में है पूरी तरह से ये। आप लोग खुद भी जुड़िए, और आपके जो भी दूसरे साथी दोस्त हैं, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप उनको सबको भेजिए, सबको जोड़िए। आप लोग के लिए मैं डॉक्टर विशाल सिंह जी का एक स्पेशल लेक्चर रखवा दूंगा, आप लोग कहेंगे तो। जैसा मान लीजिए आपने वीडियो देखा, नहीं कुछ समझ में आ रही है, तो हम आपका अलग से भी लेक्चर रखवा देंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये 30 अप्रैल तक आपका चलेगा पूरा कोर्स, तो आप लोग आराम से जो है देख सकते हैं। अगर आप लोग बोलेंगे तो जो डॉक्टर मंजरी जी हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, इनसे बात कर लेंगे, इनका भी रखवा देंगे लेक्चर। तो आप लोग चिंता मत करिए, मैंने आप लोग को आज पहले ही बता दिया कि अब आप लोग बीएचयूएन से, और जो है डीयू डीयू में भी मेरे कई मित्र हैं, मैं उनकी भी क्लासेस सोच रहा हूँ रखवाने के लिए आप लोग को एलटी ग्रेड में। और इसके अलावा जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी मेरे कई मित्र हैं इस समय। तो अब आप लोग को बहुत फायदा होने वाला है, एक से बढ़ के एक सुपरस्टार आप लीजिए, हैं। आप लोग अपनी तैयारी में सब अपना अपना अनुभव बताएंगे। तो ये है। चलिए अब इस पे हमने बात कर ली, उम्मीद है कि सभी लोग कर लेंगे। विजय लक्ष्मी एवरीवन, आप सभी लोग कर लेंगे भाई, जितने लोग हैं यहाँ पे। अभी मैं किसी का देख नहीं पा रहा हूँ, ये तो सबसे फास्ट काम इन्होंने किया है भाई। अंजलि जी के लिए तालियां बनती है, सबसे पहले इन्होंने काम कर दिया अब की बार, हैं? सभी लोग इसमें ज्वाइन हो जाइए, आप सभी के भले के लिए, सभी के करियर के लिए है। चंद्रेश जी बिल्कुल कर सकते हैं, सभी के लिए है, फ्री में है, कोई पैसा नहीं लग रहा है।
कोई पैसा नहीं लग रहा, फ्री में है। अब बताओ, ये लोग कह रहे हैं नहीं हो पा रहा। अंजलि जी आप थोड़ा बता दो जिसका नहीं हो। संजय जी क्या समस्या आ रही है एक बार बता दो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़े। क्या समस्या, जल्दी बोल के बताओ, माइक वाइक ऑन है अभी। संजय बताओ भाई, बोलो जल्दी करो, समय नहीं है। हैं तो बोल ही नहीं रहे। माइक तो मेरी तरफ से ऑन है ना, सब लोग तो बोल सकते हैं। अरे सब्जेक्ट से नहीं मतलब है चंद्रेश जी, आप किसी भी सब्जेक्ट हैं, आप लिटरेचर सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, यू कैन ज्वाइन इट। पीजीटी और टीजीटी के लिए भी वो बता रहे हैं, टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट्स भी सीख सकते हैं उसमें, क्योंकि है तो हमारा लिटरेरी टर्म्स ही उसमें। आप ही लोग के लिए है तब तो मैंने बताया, मैं ऐसे Yes, sir. थोड़े ना बता रहा हूँ। यस सर। वो तो मैंने लेक्चर में बता ही रहा हूँ कि आप ही लोग के लिए है ये। जी सर। सर प्रणाम। प्रणाम, बताइए गुलाब जी। सर प्रयास करूंगा सर, हालांकि मैं इस मामले में कमजोर हूं, लेकिन प्रयास करूंगा सर कि हो जाए प्रयास मेरा। करिएगा, यहाँ तमाम लोग हैं। अभी गुलाब चंचल सर जी आप कमजोर बिल्कुल भी नहीं है। अरे अंजलि जी बिल्कुल हेल्प नहीं करती सर। अंजलि जी से हेल्प सर लीजिए। आपने कभी मुझसे कहा ही नहीं, अब मुझे सपने थोड़ी ना आ रहे हैं। आप ये- मुझसे कहोगे तो मैं जरूर करूंगी। मैंने एक आध बार फोन किया आपको हेल्प के लिए, लेकिन अंजलि आपने जी कोई- क्या गुलाब बात है सर भाई, आप ध्यान प्लीज नहीं दे प्लीज, रही है। मैंने जब भी आपने मुझसे कहा तो मैंने आपको बताया है हर एक बात। चलिए गुलाब जी, कोई नहीं, चलिए अभी ठीक है। मदद कर देंगे अंजलि जी, चिंता की बात नहीं है आपको। जी जी सर, जी सर। तो आप लोग इसमें जुड़िए। गुलाब जी आपको बहुत हेल्प करेगा। आप एमएच अब्राहम इतना बढ़िया से पढ़े हैं, तो जब ये लेक्चर जी आप सर। पढ़ेंगे ना तो और बहुत बढ़िया आपका एमएच सर अब्राहम हो गुलाब जाएगा। सर ने तो एमएच अब्राहम को बिल्कुल कैप्सूल बना के खा लिया है। हाँ कैप्सूल बना लिए गुलाब जी, ये तो मानना पड़ेगा भाई। जी जी गुलाब जी बहुत काम कर रहे हैं रेगुलरली, ये हमसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। अभी भी सोचिए, आप सब लोग भूल गए, इनका हमेशा प्रश्न आता रहता है। अब मैं ही थोड़ा Yes, समय sir. नहीं निकाल पाता हूँ जवाब देने के लिए, लेकिन ये लगातार जो है अपनी तरफ से कोशिश करते रहते एमएच हैं। अब्राहम के तो मास्टर हो गए हैं गुलाब सर। हाँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कोई एस्पिरेंट इस लेवल पे जाके काम कर रहा है कंटिन्यूअसली, तो बहुत अच्छी बात है। गुलाब जी आपको ढेरों बधाइयां, ऐसे लगे रहिए आप इस समय यूपी पीजीटी के बहुत अच्छे एस्पिरेंट हैं, पीजीटी टीजीटी के। ये आपका आशीर्वाद है सर। हाँ बस ऐसे ही लगे रहना है, और आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है। अब ये सफलता इस लेवल पे लेके जानी है आपको, है ना। जी सर, जी सर। चलिए अब और लोग बताएं भाई, तो कितने ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि सर यूपी टीजीटी पीजीटी में भी कुछ कराइए। जैसे अभी राजकुमार जी हैं, इन्होंने पेपर नहीं दिया है, तो इनका भी इच्छा होगी कि सर पीजीटी टीजीटी पे कुछ कराइए। और भी लोग हैं। सर पेपर मुझे भी देना है पीजीटी का। हाँ मतलब जितने हैं वो तो हैं ही लोग हैं तो वो तो हैं ही। तो टीजीटी पीजीटी पे भी कुछ स्पेशल आप लोग का कुछ किया जाए, है ना। तो मैंने ये सोचा है कि मुझे आप लोग 1 से 2 हफ्ते का समय देंगे, तो फिर उसके बाद हम जो बैच लॉन्च करेंगे आपका, कुछ चीजें हम सोच रहे हैं कि आप सभी के लिए बीच बीच में यूट्यूब पे हम फ्री में लाते रहेंगे। कोई बैच स्पेशल लॉन्च अभी करने का हम नहीं सोच रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि कुछ आप लोग के लिए कुछ पेड ना करके कुछ फ्री में ही यूट्यूब पे मैं आप सभी के लिए लाता रहूंगा। दूसरी एक सबसे बड़ी चीज जो कि शिखा जी का एकदम कहना सही है कि सर नोट्स जस्ट लाइक एलटी। हाँ, तो ये एक अच्छा आइडिया है, और इस पे मैं काम कर रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि यूपी टीजीटी पे और जीआईसी पे और पीजीटी पे, इन तीनों पे जो है आप सभी के लिए बहुत जल्दी, आप सभी के लिए साइड में मैं नोट्स पे काम करता रहूं, ताकि आपका नोट्स जल्दी से जल्दी आ जाए। जैसे अगर आप लोग को अभी लग रहा होगा इस समय कि सर अगर एलटी ग्रेड का नोट्स, आपका जितना बढ़िया नोट्स है, अगर ये नोट्स हम लोग को कहीं 1.5-2 महीना पहले मिल गया होता तो मजा आ जाता। लग रहा होगा कि नहीं कि काश सर 1.5-2 महीना पहले मिल गया होता, वो हो नहीं पाया। तो अगर इसकी कमी हम पूरा कैसे कर लें कि अगर हम यूपी टीजीटी या जीआईसी या पीजीटी का नोट्स ऐसे हम 2 महीना, अगर अभी हमारा 1 महीने के अंदर सारी चीजें रेडी हो जाए, तो आपके कोई भी एग्जाम जो है टाइम लग जाएगा आने में। तो आप उसको कई बार पढ़ चुके रहेंगे, तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो एक तो मेरा अभी जो टारगेट है, जो मैंने खुद से लिया है कि आप सभी के लिए जो है अगले 15 से 1 महीने के अंदर, 15 दिन से 1 महीने के अंदर आपकी जीआईसी की और यूपी पीजीटी की नोट्स रेडी करना टीजीटी के, ठीक है।
तो वो मैं रेडी कर दूंगा, आपको मिल जाएगा। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज ये है कि एक आप लोग का स्पेशल पेड बैच स्टार्ट होगा, जिसे स्टार्ट ही करना पड़ेगा एलटी का। तो एलटी का तो पेड बैच स्टार्ट होगा ही, क्योंकि अब आपको मेंस की आंसर राइटिंग की तैयारी करनी है, जो मैंने अनाउंस कर दिया है। वो हम 1 फरवरी से चला रहे हैं, वो 1 फरवरी से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये भी चल रहा है, ये भी दिमाग में चल रहा है, ये होना ही है, इसको तो एकदम अवश्य, ये तो शर्त ही है कि इसको स्टार्ट ही करना है। यानी एलटी का आपका राइटिंग का बैच एक स्टार्ट करना ही पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज हमने आपसे कहा नोट्स सबके रेडी करने पड़ेंगे, एक ये हमारा टारगेट है। तीसरे नंबर पे ये है कि जो टीजीटी की तैयारी करने वाले हैं, मेंस कब तक होगा सर, ये अंजलि जी का प्रश्न है। आपका मेंस का एग्जाम आप मान के चले अंजलि जी कि अभी तक जो संभावनाएं चल रही हैं वो मई में हो सकता है, यदि इनको टाइम मिला तो। और अगर मई में टाइम नहीं मिला तो फिर ये एग्जाम आपका होगा जुलाई में। तो मतलब आप जितना सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा समय मिलने वाला है अंजलि जी आपको, और आप सभी को ज्यादा समय मिलने वाला है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि ये आपका प्रधानी का चुनाव जो होने वाला है, इसकी वजह से आपको टाइम मिल गया। क्योंकि अगर ये चुनाव आपका ठीक ठाक समय ले रहा है, अगर ये चुनाव न रहता तो एकदम 100% श्योर था कि आपका एग्जाम ये अप्रैल में या मई में हो जाता। ठीक है। तो अप्रैल के बाद से जो है ना, मई में उतना टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि फिर वो बोर्ड और भी ढेर सारे एग्जाम रहते हैं, तो पता नहीं ये करा पाएंगे कि नहीं। तो आप मान के चलें कि अगर मई में इनको मौका मिला और इनकी इच्छा रही, सबसे बड़ी बात मौका की बात नहीं, इच्छा की भी बात है। दूसरी बात ये है कि इनके पास सिर्फ एलटी तो है नहीं राजकुमार, जीआईसी भी है। तो हो सकता है इनको समय मिले तो ये कहें हम जीआईसी का प्री करवाएं मई में, और फिर उसके बाद जो है एलटी और जीआईसी दोनों का मेंस लगभग साथ में जुलाई में लेके जाएं। तो जहां तक अभी मुझे लग रहा है कि इतनी कोई हड़बड़ी ये कर नहीं पाएंगे। अरे वो आर्डर तो ऐसे आर्डर आया करता, कुछ हो पाता नहीं है। अपार बना लीजिए ना विजय लक्ष्मी जी, अच्छी चीज है वो। अपार आईडी मांग रहा है, अगर आप देख लीजिए, अगर वो कंपलसरी ना हो तो अब क्या होगा कि मैं क्या बता रहा था, आप लोग भुलवा देते हैं। हाँ, कि जुलाई से पहले जो है आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। जो सिचुएशन है, जो बन रहा है, एलटी ग्रेड के मेंस का एग्जाम जुलाई से पहले होने की संभावना बहुत कम है। तो अगर आप और देखें, जीआईसी का प्री भी सर जीआईसी का प्री हो सकता है मई में करवा लें, मई में, ओके। ठीक है, ये हो सकता है। और अगर नहीं करवा पाए तो फिर जीआईसी का प्री आप मई में पाएंगे पहले, और फिर एलटी ग्रेड का मेंस उसके बाद, फिर उसके बाद जीआईसी का मेंस। तो ये रहेगा, और यही वो पीक टाइम है जब आपका यूपी टीजीटी पीजीटी भी होने वाला है। ये बहुत पीक टाइम चल रहा है। इसी पीक टाइम पे आपका यूपी टीजीटी पीजीटी भी होगा, आप मान के चलें, ठीक है। मतलब नहीं होगा तो नहीं होगा, होगा तो सारा एक साथ। हाँ, यही कहानी है। तो ये एकदम, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उस समय कहीं कहानी ये ना आ जाए कि आप फिर वही घबरा जाओ, टुनटुन प्रसाद बन जाओ। अरे सर अब ये बताइए, मैं एलटी का मेंस दूं कि जीआईसी का दूं, कि जीआईसी के प्री पे फोकस करूं, कि सर पीजीटी का एग्जाम आया है इसमें सिर्फ एक ही पेपर होगा, तो क्या करें, इसको दे दें कि हम पीजीटी के पेपर को दे दें। ये सब जो है टेंशन ना आने पाए, इसलिए आप सभी के लिए बेहतर ये होगा कि आप लोग अभी से, ये जो बैच स्पेशल आ रहा है एलटी ग्रेड का, ये जो विशाल सर का आ रहा है बैच, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आप पूरा लिटरेरी टर्म्स आपका रिवाइज हो जाएगा बहुत बेहतरीन लेवल पे। तो आप लोग इसे जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि एक चीज आपकी साइड में होती रहेगी, तैयार रिवाइज होती रहेगी बढ़िया। और आप सभी को पता है टीजीटी और जीआईसी दोनों में जो है आपके कम से कम, पीजीटी, जीआईसी और टीजीटी दोनों में कम से कम 20 क्वेश्चन आपके लिटरेरी टर्म्स के आते ही हैं। 18 से 25 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, पिछली बार तो 25 आया था, तो आना ही है।
तो ये आप सभी के लिए समझ लो कि बहुत मतलब जरूरी चीज है, आप लोग इसे जरूर करें। दूसरे नंबर पे जो है यस राजकुमार जी कह रहे हैं प्लीज फोकस ऑन टीजीटी नोट्स टू। हाँ तो वो तो मैंने कह दिया ना, मैं फोकस कर रहा हूँ, फोकस चल रहा है। आप लोग को बहुत बढ़िया नोट्स मैंने मिल्टन का दिया है। टीजीटी के नोट्स मतलब डिटेल्ड में रहेंगे, जैसे आपको मिल्टन का मिला था वैसे ही आपको दूंगा मैं शेक्सपियर का, क्योंकि टीजीटी का मतलब 4 ही राइटर हैं तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो आपको चारों राइटर पे मेरी एक एक किताब मिलेगी। शेक्सपियर पे किताब मिलेगी, बहुत शानदार रहेगी। और इसी तरह आपको उस पे भी मिलेगी, गाल्सवर्दी पे, इसी तरह आपको मिलेगा। मिल्टन तो हो गया, वर्ड्सवर्थ पे मिलेगा। तो वो रहेगा, और जीआईसी के लिए अलग से प्लान है। तो ये चीजें मेरी तरफ से चीजें चल रही हैं। साथ ही साथ हाँ एक चीज और था कि आपका यूपी टीजीटी का टच स्टोन बैच चल रहा है। ये टच स्टोन बैच मैंने आप सभी से कहा था कि भाई आप लोग को मैं मतलब मैंने तो अपनी तरफ से जब प्लान किया था तो इतना सोचा नहीं था, मैंने ग्रामर वकैब और लिटरेचर अलग अलग नहीं सोचा था। लेकिन अब ये आप लोग का सौभाग्य है कि मैंने कहा नहीं चलो एग्जाम की डेट दूर है, तो मैंने बहुत अच्छे से करवा दिया। आपको पूरा ग्रामर का अलग से चल रहा है, वकैब का अलग चल रहा है, लिटरेचर अलग चल रहा है। बहुत काम किया यूपी टीजीटी के टच स्टोन पे, और आप लोग सोचे जितना नहीं होंगे सपने में, उससे कहीं ज्यादा बहुत ज्यादा मटेरियल दिया है। और अभी भी वो अभी रुका हुआ है, चूंकि एलटी ग्रेड का एग्जाम था, अब उसे हम फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपका जो टीजीटी का प्रैक्टिस सेट है उसमें कई पहले जो शुरुआत में हुआ है तो उसमें थोड़ी बहुत ऐसा है कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो हम सारी चीज़ों को यूनिफॉर्म करके अब जो आपका कोचिंग का एप्लीकेशन है उस पर उसको डालने जा रहे हैं कि थोड़ा सा यूनिफॉर्मिटी आ जाए, थोड़ा सा उसमें क्वालिटी आ जाए। और आपको फिर से टेस्ट 1 से लेके और टेस्ट 60 तक आपको कंप्लीट मिलेगा। आपको 60 टेस्ट ग्रामर का मिलेगा, 60 आपको मिलेगा वोकैबुलरी का, और 60 मिलेगा आपका जो है लिटरेचर का। आप सभी को मैंने इसका ब्लूप्रिंट भी दिया है, वो ब्लूप्रिंट भी हम अपलोड कर देंगे। लेकिन आप सभी को बताएं कि ये जब एप्लीकेशन पे जाएगा, अभी आप में से तमाम ऐसे लोग हैं जिसकी इसकी फीस हमने आप सभी को बताया था कि 3,000 रुपये फीस है, लेकिन इसकी फीस हमने अपने कोचिंग के सारे बच्चों के लिए 2,000 रुपये कर दिया था। और ये कहा था कि आप लोग जब कभी भी होगा तो दे देना, लेकिन वो आप सभी से कभी हो पाया नहीं तो आप दे पाए नहीं है। तो आप में से कुछ लोगों ने दे दिया है, कुछ लोग नहीं दे पाए हैं। अब जब वो एप्लीकेशन पे जाएगा तो आप सभी को ध्यान रखिए कि ये जो अमाउंट अगर किसी का बाकी होगा तो ये प्लीज़ आप पे कर देना। और आप सभी को बता रहा हूँ कि टीजीटी का जितना बढ़िया हमने टच स्टोन में प्रैक्टिस करवा दिया है या हम अभी करवा रहे हैं, इतना बढ़िया प्रैक्टिस कभी नहीं मिलने वाला है आपको, कभी नहीं। आप ग्रामर के एक एक टॉपिक पे प्रैक्टिस है। आप सभी भूल गए हैं क्या टीजीटी टच स्टोन? याद है किसी को कि भूल गए आप लोग? टीजीटी टच स्टोन आपको भूलना भी नहीं चाहिए सपने में भी। 1 सेकेंड आप लोग बस देंगे ताकि आपको एक सरसरी निगाह से मैं दिखा दूं आपकी समझ के लिए। और आप सभी को बहुत फायदा करने वाला है, बहुत फायदा करने वाला है। और मैं आप सभी को कुछ इस पे स्पेशल देखूंगा कि मैं कुछ लेक्चर भी ला सकता हूं क्या। तो ये टच स्टोन पे मैंने कुछ लेक्चर भी लाए थे आपके। टीजीटी टच स्टोन ब्लूप्रिंट टीजीटी एक मिनट। टीजीटी टच स्टोन का ब्लूप्रिंट मैंने आप लोग को बनाया तो था, एक मिनट। अगर एक बार दिख जाता तो मैं आप लोग को दिखा देता। और ऐसे लग रहा नहीं मिल रहा मुझे, यहाँ तो उसे सब वो करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहीं पे होगा वो। ऐसे तो नहीं दिख रहा है मेरे को।
ठीक है, तो टीजीटी टच स्टोन का ब्लूप्रिंट अभी दिख नहीं रहा है ना, तो वो मैंने बहुत अच्छे से आप सभी के लिए बनाया है और मैं आप सबको उसे अच्छे से मतलब मैं आपको गाइड करूंगा। जो टेस्ट सीरीज है टीजीटी का टच स्टोन का, उसी को आप लोग जो है करेंगे तो आपका बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश हैं और उन्होंने मुझसे पर्सनली मैसेज करके भेजा। इधर आपका शुरुआत का 1 से 30 तक का जो है वो बंद हो गया था जिस प्लेटफॉर्म पे है, तो पर्सनली मुझे रोज मैसेज कर रहे हैं कि सर शुरू के 30 टेस्ट आपके काम नहीं कर रहे हैं टच स्टोन के, तो प्लीज सर कुछ ऐसा करिए कि मतलब वो काम करने लगे। तो मैंने उन्हें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी हम उस पर कुछ काम करेंगे। तो हम अब शुरुआत से लेकर एंड तक सारे टेस्ट को हम कहाँ पे लेकर आ जाएंगे, एप्लीकेशन पे आएंगे, ताकि एप्लीकेशन पे थोड़ी आपको सहूलियत हो, आप बार बार टेस्ट दे पाएं और अपनी कमियों को दूर कर पाएं। तो ये आपका रहेगा। तो ये आपका टीजीटी टच स्टोन चलता रहेगा और फिर हम आपको गाइड भी करते रहेंगे कि आप कैसे तैयारी करें। बीच बीच में आप लोग की कुछ एक्स्ट्रा क्लास लेंगे और आपको गाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो टीजीटी वाले भी बिल्कुल ना परेशान हो, उनके लिए भी हम मदद करते रहेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं एलटी ग्रेड के लिए और फिर उसके बाद आप लोग अपनी जो भी टीजीटी पीजीटी वाले सभी लोग बने रहें और आप लोग अभी आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं कि सर हम क्या करें, कैसे करें, हम आपसे बात करेंगे। थोड़ा सा हम एलटी ग्रेड को बस अगले 5 मिनट के लिए बस रोक रहे हैं, उनको कुछ बता रहे हैं, ठीक है। नहीं प्रेमलता, अभी बात कर रहे हैं, बस 2 मिनट रुक जाइए। और ये सभी के लिए जरूरी है, सभी देखें। एलटी ग्रेड वाले अभी देखिए, कोई भी परेशान ना हो, अगर किसी का भी 70 नंबर से ऊपर है, चाहे आप जिस कैटेगरी में हो, अगर आपका 70 नंबर से ऊपर है तो आप चिंता ना करें। आप सभी मान के चलें कि अभी आप सभी के लिए अवसर है। अब यहाँ आ जाए आप, एलटी ग्रेड के मेंस में अवसर है। अब यहाँ पे ध्यान दें कि जो द्वितीय चरण होने वाला आपका, यानी जो एलटी ग्रेड का मेंस होने वाला है, उसका क्या पैटर्न है, मैं एक थोड़ा सा गाइड कर देना चाहता हूं, ताकि अभी जब तक बैच नहीं स्टार्ट हो रहा है तो जो एलटी ग्रेड की तैयारी करने वाले लोग हैं वो अपने काम पे लग जाएं, उन्हें कैसे तैयारी करना है उस पर थोड़ा सा वो लग जाए, ठीक है। अभी अवनीश जी बात कर रहे हैं, बस 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है। तो अब जरा यहाँ पे ध्यान दें कि यहाँ पे जो आपका है, यहाँ पे वो आप सभी ध्यान दें कि 200 नंबर का टोटल आपका मेंस होने वाला है। एलटी ग्रेड का कितने नंबर का होने वाला है? 200 मार्क्स का होने वाला है मेंस। और ये 200 मार्क्स का जो होगा, इसमें टोटल आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। अब ये जो 20 क्वेश्चन मिल रहे हैं, इसमें 10 क्वेश्चन आपके होंगे लॉन्ग और 10 क्वेश्चन होंगे आपके शॉर्ट, ठीक है। अब फिर ये समझना पड़ेगा कि जो 10 क्वेश्चन लॉन्ग होंगे, ठीक है, और 10 क्वेश्चन जो शॉर्ट होंगे वो कैसे होंगे, क्या प्रारूप होगा। तो जो 10 क्वेश्चन आपके शॉर्ट टाइप के होने वाले हैं, ये 10 क्वेश्चन जो है इनकी शब्द सीमा कितनी है? मात्र 125 वर्ड है, ठीक है। और हर प्रश्न की वैल्यू कितनी है? 8 नंबर है। इसी तरह से जो 10 प्रश्न लॉन्ग होने वाले हैं, इनकी वर्ड लिमिट कितनी है? 200। और कितने नंबर का होने वाला है? 12 नंबर का। तो ये काफी महत्व रख रहा है। 12 8 कितना हो गया? 20 नंबर, ठीक है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि आपको दोनों प्रकार के प्रश्नों की तैयारी करनी पड़ेगी। आप सोचिए कि सर 3 घंटे का टोटल समय दे रहा है, यानी टोटल 180 मिनट का समय है, तो हम कैसे मैनेज करेंगे कि ये 20 क्वेश्चन हमारे हो जाए। तो आप सभी को मैं बता दूं कि ये जो आपका लॉन्ग आंसर है, ये टोटल 12 नंबर का है। हर क्वेश्चन को आपको कितना समय देना है मैक्सिमम, तो आप एक क्वेश्चन को यहाँ पे मैक्सिमम 10 मिनट दे सकते हैं। यानी 10 मिनट के समय में आपको कितना वर्ड लिखना है? 200 वर्ड की प्रैक्टिस आज से शुरू कर देनी है। 10 मिनट में आपको कितने वर्ड्स लिखने हैं? 200 वर्ड लिखने हैं, तब आपकी बात बनेगी। और ये जो आपका 125 वर्ड में लिखना है आपका शॉर्ट आंसर, इसके लिए आपको क्या करना है कि ये आपको देना है कितना? 6 मिनट। कितना देना है? 6 मिनट। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो आप लोग जितने भी एलटी ग्रेड की तैयारी करने वाले हैं, आप सभी को बता दे रहा हूं कि भैया आप लोग अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें। और आपको 125 वर्ड लिखने के लिए एक पेज भी नहीं जाएगा, आधा पेज में आपके 125 वर्ड हो जाएंगे। अगर छोटी वाली कॉपी है तो उसमें एक पेज लगभग लग सकता है, थोड़ा सा कम ही उससे लगेगा। अगर बड़ी वाली कॉपी है, पेज है, तो आधा पेज लगेगा।
A4 वाले में तो आधे में हो जाएगा, A4 में आधे में हो जाएगा 125। तो आप ये समझ लो कि 125 वर्ड आपको लिखना है, 8 नंबर का है, और मुझे लगता है ये 125 नंबर वाले आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, इसलिए आप इनको हल्के में न ले, क्योंकि ये आपको फुल नंबर दिलाएंगे, यहाँ आपका नंबर कटेगा ही नहीं। तो अब आप क्या करेंगे कि आपको फुल फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन देना है। 5 से 6 मिनट का आपको समय लेना है, क्योंकि कोई क्वेश्चन 7 मिनट भी ले सकता है कठिन हो तो कम से कम आप आदत डालें कि 5 मिनट न्यूनतम आपको बनाना है टाइम वॉच, और मैक्सिमम 6 मिनट करना है, और 5 से 6 मिनट में आप जो है प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, और इसी तरह से 10 मिनट में प्रैक्टिस करना शुरू कर दें आप ये। अब देखिए आपको फायदा क्या होगा, सपोज करो 6 मिनट में आप कर रहे हैं तो आपके 10 क्वेश्चन हो गए 60 मिनट में, और 10 मिनट में एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो 10 क्वेश्चन आपके हो गए 100 मिनट में, तो टोटल कितना हो गया 160 मिनट। तो 160 मिनट आप तब कर रहे हैं, जब आप ये फॉलो कर रहे हैं तब 160 मिनट लग रहा है, यानी आपके पास केवल 20 मिनट बच रहा है। और 20 मिनट आप सभी को पता है परीक्षा हाल में कैसे बर्बाद होता है। मुहर आपके हाथ की अंगूठी लगाएंगे, मतलब हाथ का अंगूठा लगेगा, फिर आपके पास आएंगे, या पानी पीने आप चले गए, वॉशरूम चले गए, तो 10-20 मिनट तो सामान्य बात है। तो इतना तो आप एक्स्ट्रा लेके चलें, और आपको रिवाइज करना पड़ा, बहुत सी चीजें हैं, तो 20 मिनट का आप अपने पास एडवांटेज लेके चलें, ठीक है। और आप 6, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप ये चाहते कि आप अपने क्वेश्चंस को रिवाइज भी करें, तो आपको ये जो शॉर्ट आंसर है 8 नंबर वाला, इसको 5 मिनट में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो आपको 8 मिनट और मिल जाएगा। 8 मिनट जो आपको और मिल जाएगा, ये आपको हेल्प करेगा अपने क्वेश्चन को रिवाइज करने में। तो समझ गए? तो आपको क्या समझ में आया कि जो आपको 125 वर्ड में लिखना है, इसके लिए कितना टाइम चाहिए? 5 मिनट, केवल 5 मिनट में करना है। और जो आपको 200 वर्ड में लिखना है, इसके लिए कितना टाइम चाहिए? इसके लिए चाहिए 10 मिनट। ये आज से आप लोग डेली प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। अब आपको मैं टॉपिक अभी से बता दे रहा हूं कि आपको अभी शुरुआत कहां से करना है। तो शुरुआत आप करिए लिटरेरी टर्म्स, फॉर्म्स एंड मूवमेंट। लिटरेरी टर्म्स, फॉर्म्स एंड मूवमेंट, उस वाले सेक्शन से तैयारी करिए, ठीक है। इस वाले सेक्शन से आप तैयारी करिए। ये सेक्शन आपका जितना मजबूत होगा, ये आपको हर जगह काम करेगा, ठीक है। और आपको करना क्या है कि कोई क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे सपोज करिए सोनेट, तो अब आपको सोनेट पे शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन आएगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सोनेट। तो अगर ये शॉर्ट नोट्स ऑन सोनेट आ गया तो 125 वर्ड में लिखना है, ठीक है। तो अब आप क्या बताएंगे कि सोनेट की वर्ड की सबसे पहले तो आप बताइए कि सोनेट फैक्चुअल लिखना है, कॉन्सेप्चुअल नहीं। सोनेट का मतलब क्या है, सोनेट आया कहाँ से, लाने वाला कौन है, शुरुआत का प्रैक्टिशनर कौन था, ठीक है, आप ये बताइए। फिर उसके बाद से जो है सोनेट के टाइप्स बताइए, हर टाइप के जो फीचर्स हैं वो बताइए, हर टाइप के जो एग्जाम्पल्स हैं वो बताइए, और कुछ एक दो एक्स्ट्रा नॉलेज दे सकते हैं वो दीजिए। मतलब बहुत आप पॉइंट बताएंगे ना, तब भी 125 वर्ड से बहुत ज्यादा हो जाएगा। मतलब आपको शब्द बचाने पड़ेंगे, एक भी शब्द एक्स्ट्रा ना यूज करें आप, तब जाके आप सारी इंफॉर्मेशन 125 वर्ड में दे पाएंगे। समझ गए आप? और जब यही 200 वर्ड में आएगा तो थोड़ा सा आप उसको लेंदी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए आप? तो सोनेट, बैलेड, जो भी आपके सिलेबस में है, सबको आप जो है 125 वर्ड में और 200 वर्ड में लिखने की प्रैक्टिस करिए। इससे आपकी बहुत अच्छी पकड़ बनेगी, और आपको ये समझ में आएगा कि 125 वर्ड में आपको आखिर क्या क्या चीजें नहीं देना है। क्योंकि जब अपना आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अरे 5 मिनट में तो आप किए तो हैं, लेकिन बहुत सी चीज छूट गया, आप कर ही नहीं पाए। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि अभी मुझे और कमी रह गई है, अगली बार जब मैं ये लिखूंगी तो इसमें ये चीज छोड़ूंगी, ये चीज ऐड करूंगी, तो ये चीज आपको फायदा मिलने लगेगा। समझ में आ गया? सब पूछा जाएगा। अभी तो मैं आपको शुरुआत का काम दे रहा हूं कि अभी शुरू करो यहां से, ठीक है, शुरू करो यहां से। अभी आप, ये मैं बता रहा हूं, अभी आप इतने 10 दिन में कर लो, बहुत बड़ी बात है, अभी आप कर नहीं पाओगे। तो शुरू करो पहले अभी आप, फिर हम आपको हर चीज धीरे धीरे कराते रहेंगे, बताते रहेंगे, है ना। तो आप लोग शुरू कर दीजिए, शुरुआत यहीं से करिए, सोनेट, बैलेड, ओड, ये सब पे, और जितने भी मूवमेंट है उन पे शुरू कर दीजिए। जैसे रेनेसा पे भी एक शॉर्ट एक लॉन्ग, रेनेसा, रिफॉर्मेशन, रोमांटिक मूवमेंट, रोमांटिसिज्म, ठीक है।
प्री रैफेलाइट मूवमेंट, मेटाफिजिकल पोएट्री, इन सब पे जो है आप एक शॉर्ट एक लॉन्ग लिख के प्रैक्टिस करिए। हाँ, अब आपके एग्जाम में कैसे पेपर आते हैं, तो एग्जाम में हमेशा आपके ब्लैंक आते हैं, A4 साइज के ब्लैंक आते हैं। तो आप लोग A4 साइज के ब्लैंक पे काम करना शुरू कर दीजिए, ठीक है, लिखने की शुरू कर दीजिए, ठीक है। A4 साइज के पेपर्स ले लीजिए, उसके दोनों तरफ लाइनिंग कर लीजिए और उसके बाद काम करना शुरू कर दीजिए आप, ठीक है। जब आप बैच को ज्वाइन करेंगे तो हम आपसे क्वेश्चन आंसर राइटिंग अपनी क्लास में ही करवाएंगे। आपको टाइमिंग देंगे 5 मिनट का, आपको लिखना रहेगा और लिखने के तुरंत बाद हम तुरंत आपसे फोटो मंगवा लेंगे, ठीक है। ये हमारा पैटर्न रहेगा आपकी जब हम क्लास, फिर उसके बाद हम उसे डिस्कस करेंगे और फिर आपसे डिस्कस करेंगे, मतलब अगली क्लास में या तुरंत हमको जैसे लगेगा उस हिसाब से फिर हम डिस्कस करेंगे कि आपके क्वेश्चन में क्या क्या कमियां, ठीक है। मेमोराइज, स्टडीज एंड कंस्ट्रक्ट बिल्कुल। कोई बात नहीं है कोमल जी, आप ब्लैंक पेज पे नहीं, आप अभी लाइनिंग वाले पे शुरू करिए, फिर धीरे धीरे ब्लैंक पे आप आ जाएंगे, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो ये आप लोग के जीवन में बहुत बड़ी चीज हो रही है, राइटिंग एबिलिटी जो है आपकी जब बढ़ेगी। अब आप लोग को बताऊं कि ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है, आपको कैसे काम करना है। अब जैसे आप में से बहुत लोग कहेंगे सर हम लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे कैसे? ये तो सच बात है कि आप पढ़ लीजिए फिर भी आप 125 मिनट 125 वर्ड में आप उसको नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आपको याद ही नहीं आएगा। तो आपको इसके लिए एक तरीका अपनाना पड़ेगा, एक रफ कॉपी लेनी पड़ेगी। कैसी कॉपी? एक रफ कॉपी लीजिए। रफ कॉपी, एक मोटी सी रफ कॉपी लीजिए, मोटी सी 200 पेज की 300 पेज की, जो एकदम खराब वाला होता है। और आप क्या करिए ना, जो मेन चीजें हैं, जैसे डेट्स हो गए, कुछ वर्ड हो गए, राइटर के नाम हो गए, वर्क और उसका पब्लिकेशन डेट इन ब्रैकेट आपको देना है। तो जैसे मान लो कि आप सोनेट ही करना चाहते हैं, तो सोनेट से रिलेटेड जितनी मेन चीजें हैं उसको ना आप कैसे करो। जैसे मैं क्या करता था कि जब मैं याद करता था चीजों को, तो मैं पहले लिखता था। तो मान लो कि मुझे कोई चीज लिखनी है, तो मैं उस चीज को 5 बार अलग अलग पेज पलट पलट के लिखूंगा, ताकि वो मेरे दिमाग में जाके छप जाए। मैंने 5 बार लिख दिया उसको, अलग अलग 5 पेज पे। अब फिर उसके बाद अब वो हमको ये हो गया कि अब मेरे दिमाग में बैठ गया। इसी तरह और कोई चीज ईयर है या कोई चीज और है, तो उसको मैंने, ये क्या किसकी तरफ माइक ऑन है भाई? तो फिर हमने कंटिन्यूअसली जो है इस तरह से उसको लिख दिया। तो जब हम कोई भी आंसर लिखने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि उसको रीड करके हम लिख लेंगे। एक बार पहले उससे रिलेटेड जो मेन चीजें हैं उसको ध्यान करिए कि क्या वो आप लिख पा रहे हैं। तो आप आंख बंद करके सोचिए और पहले उसको छोटे छोटे एक एक फैक्ट्स को अपने नोट्स पे लिख के देखिए आप, रफ पे 2-3 बार। अगर आप सही सही लिखा जा रहा है, इसका मतलब आपकी तैयारी ठीक है, अब आप जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी क्वेश्चन के जो मेजर फैक्ट्स हैं, अगर वो आप आंख बंद कर रहे हैं और आपकी आंखों के सामने नहीं आ रहा है, तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप कभी भी लिख नहीं पाएंगे। तो ये हवाबाजी में गेम नहीं खेल रहे हैं आप कि हो जाएगा। ये आपको पहले वो चीजें आंख बंद करके सोचना पड़ेगा। जैसे मान लो सोनेट है, तो क्या आंख बंद करने पे सोनेट से रिलेटेड कहाँ से ओरिजिन हुआ, सोनेटों का मतलब क्या है, जो इसके सबसे पहले राइटर हैं, और उसके बाद कितने टाइप्स ऑफ सोनेट हैं, उनके राइमिंग स्कीम क्या है, क्या आपके आंखों के सामने आ रहा है? नहीं आ रहा है तो आप बेवकूफ हैं, आप लिखने क्यों जा रहे हैं? पहले उसको जानिए, उसको एक रफ कॉपी पे पहले उन सबको जो चीज नहीं याद आ रहा है उसको नोट करके बार बार उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, केवल एक एक चीज को। और फिर उसके बाद फिर आंख बंद करिए, फिर देखिए वो याद आ रहा है कि नहीं। अब जब याद आ गया तो इसका मतलब अब सही स्थिति में हैं आप, अब आप अपने आंसर राइटिंग की शुरुआत कर सकते हैं। जब याद ही नहीं आ रहा है तो आप खुद को भी बेवकूफ बना रहे हो, हमको भी बना रहे हो, उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। तो पहले आपको जो चीज नहीं याद आ रही है, मेमोरी में नहीं आ रही है, उसको क्या करना पड़ेगा? मेमोरी में लाना पड़ेगा, और उसके बाद से आप उसको प्रैक्टिस करें, फिर काम करें। अब क्लियर है एकदम? इतनी बात समझ में आ रही सभी को? बताओ भाई, विजय लक्ष्मी समझ में आया? चंचल जी, अंजलि जी, समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। तो करेंगे ना, अब आप लोग शुरू कर दीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए रेनेसा की बात कर रहे हैं, तो आंख बंद करिए और अपने आप से सोचिए क्या रेनेसा के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको आ रहे हैं। या रफ वाली कॉपी लीजिए और केवल कैरेक्टरिस्टिक के नाम लिख के देखिए पहले। भाई जो क्वेश्चन है उसका कंस्ट्रक्शन तो क्लियर रहना चाहिए ना, तब तो लिख पाएंगे आप।
तो कंस्ट्रक्शन क्लियर हो गया, अपने आप क्वेश्चन क्लियर हो गया, कुछ है ही नहीं। ये सबसे बड़ी चीज है। तो आप लोग को देखो मजे मजे में मैंने बहुत बड़ी चीज बता दी जो पेड बैच में बताने वाला था। हाँ, अभी स्टार्ट होने वाला है, लेकिन मैंने सोचा कि 10 दिन तक आप लोग बेकार क्यों रहेंगे, कुछ काम वाम शुरू करिए। हैं, आप सब हमारे स्टूडेंट हैं भाई। हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो ये है। अब ये बताओ कितने लोग मेंस वाले बैच में एडमिशन ले रहे हैं, पहले हाथ इधर बताओ भैया। सर हेलो। हाँ, सर कह रहे थे जैसे टॉपिक को राइटिंग के लिए जो बता रहे हैं तो उसको आपकी नोट्स को प्रेफर करें कि बुक्स भी जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उसको भी पढ़ लें अभी। बिल्कुल। अभी तो आप ना एमएच अब्राहम भी पढ़े हैं, अभी तो आप सब कुछ कर ले। देखो आपको क्या होना चाहिए ना कि फैक्चुअल चीजें एकदम दिमाग में होनी चाहिए। जैसे एमएच अब्राहम में भी फैक्चुअल है तो आप उसको कर लीजिए। वैसे हमने नोट्स में सब कुछ देने की कोशिश की है। और सर सबसे ये बड़ी पूछ रहे थे ना सर, किसी एक सोर्स को प्रेफर करेंगे ना आप तो राइटिंग नोट्स को सिर्फ प्रीफर करिए, सिर्फ जी सर, नोट्स को प्रीफर करिए, क्योंकि अभी मैं बता रहा हूँ आप नोट्स को प्रीफर करिए। नोट्स ऑलरेडी हमने काफी मेहनत करके बनाई है, सब कुछ है उसमें। और दूसरी बात यह है कि जब हम आप लोग के लिए आंसर राइटिंग शुरू करेंगे तो आप लोग को कुछ अलग से भी देना होगा, तो हम आप सभी को स्पेसिमेन आंसर भी देंगे। लेकिन यह है कि अभी नोट्स आपके पास है तो नोट्स को आप बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करिए, ठीक है। अगर आपको किसी एक बुक की जरूरत हो तो उस कंडीशन में आप एमएच अब्राहम की बुक को ही प्रीफर करेंगे और किसी बुक को प्रीफर नहीं करेंगे, ठीक है। बस अगर किसी एक बुक को सिर्फ उठाना हो, क्योंकि ये सबको कवर करेगा ना, लिटरेरी टर्म्स, फॉर्म, मूवमेंट, फिगर ऑफ स्पीच, तो एक बुक रख लीजिए एक्स्ट्रा बुक के तौर पे अपने पास, ठीक है। सर पढ़ना तो अच्छा, लेकिन उसमें जैसे एमएच अब्राहम को अगर हम पढ़ते हैं तो लिखने में सर उनकी लैंग्वेज तो हम लिख नहीं पाएंगे, लेकिन पद्मजा अशोक का जैसे जो भी टॉपिक दिए हैं उसमें स्पेशली ये टर्म्स वाले बहुत अच्छा उन्होंने फीचर्स वगैरह दिया है। तो वो हमको लगता है राइटिंग के लिए सर, मतलब अगर उसको पढ़ के करते हैं तो राइटिंग के लिए अच्छा लगा, उन्होंने इजी वे में दिया है ना उसको। एमएच अब्राहम को तो समझ सकते हैं सर, लेकिन लिख नहीं सकते हम उसको। हाँ ये तो है, लेकिन एमएच अब्राहम तो उसमें देखो अभी जैसे आपको जो पद्मजा अशोक का लिटरेरी टर्म्स है बेहतर है, लेकिन हम मुझे आपको बेस्ट लगती है क्योंकि उनका बहुत इजी में और सारी चीजें उन्होंने इंक्लूड की हैं उसमें, और बहुत सिंपली वे में दिया हुआ, जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं उन्होंने छोड़ा भी नहीं है। इसलिए सर आपसे पूछे थे कि स्टार्ट करें तो किसी एक को ही प्रिफर करें ना तो सही रहेगा, वो फिर माइंड में वो चीजें ना सीक्वेंस वाइज जाती है कि हमने इसको पढ़ा था तो ये दूसरे नंबर पे तो था, फर्स्ट आप पे था, ऐसे कैसे करके। तो उस आप टाइम जब उसमें राइटिंग पद्मजा करेंगे तो अशोक में मूवमेंट तो दिया नहीं है ना। हाँ तो सर मूवमेंट नहीं है, टर्म्स तो सारे हैं मेरे ख्याल से। हाँ तो आप देख लीजिए, कर लीजिए वहां से। जैसे सर आप बताइए, इसलिए पूछ रहे थे कि आपके नोट्स को क्योंकि एक दो सोर्स रहेगा सर तो वो सही रहेगा, फिर सब पढ़ के ना फिर उसी में सब एकदम। देखिए जब हम आपको नोट्स दे दिए हैं तो आप नोट्स पे काम करिए, जिसका नोट्स नहीं है उसकी विशेष परिस्थिति है तो फिर आप देख सकते हैं, है ना। नोट्स में तो सब है ही है सर, उसमें कोई तो दिक्कत फिर इधर उधर जाने की क्या जरूरत है। तो मैंने ये कहा कि अगर नोट्स में नहीं मिल रहा है, जैसे आप कोई भी चीज अब पता चले उसको करेंगे फिर नोट्स में जाएंगे तो दो जगह हो गया, है ना। तो जैसे मूवमेंट का सेक्शन नोट्स वाला मैंने आपको मूवमेंट दिया है, इसके अलावा जो है जिसका नोट्स मैंने नहीं दिया मैं उसका नोट्स आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। तो नोट्स ऑलरेडी अपने आप में कंप्लीट है और बाकी आप लोग देख लीजिए। देखिए मेरा सिर्फ कहने का मतलब यही है कि आपके जो आंसर होने चाहिए वो फुल ऑफ फैक्ट्स होने चाहिए। अगर उसमें फैक्ट्स की कोई कमी रहेगी तो फिर वही दिक्कत होगा। बाकी आप उसे कहीं से भी कर सकते हैं, बस कंफ्यूज ना हो इसलिए सोर्स के तौर पे आप लोग एक सोर्स रखें। और सबसे बड़ा सोर्स ये है कि जब हमने आपको नोट्स दिया है, जैसे मूवमेंट का नोट्स है कंप्लीट, अगर टर्म्स का नहीं है तो मैं टर्म्स का आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा, और जब तक नहीं प्रोवाइड करा रहा हूँ तब तक के लिए आप लोग पद्मजा अशोक बिल्कुल प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। चलो एनीबडी एल्स। हाँ अच्छा, अभी राजकुमार जी नोट्स नहीं लिए हैं तो राजकुमार जी थोड़ा रुक जाइए, उसमें प्रोज का तो हो गया है, पोइट्री का भी हो गया था, शॉर्ट स्टोरी अभी नावल और ड्रामा का ऐड करना बाकी है तो उसे मैं कर देता हूं तब आप मंगाइएगा, ठीक है। थोड़ा सा और रुक जाइए। चलिए तो ये हो गया। और किसी कोई डाउट है? चंचल जी आपका प्रश्न सॉल्व हुआ? अभी जब तक लिटरेरी टर्म्स सर मुझे तो नोट्स किसी चीज का हाँ अच्छा सर मुझे तो नोट्स नहीं मिले सर किसी चीज का। हाँ अभी आप भी थोड़ा रुक जाइए। एक्चुअली जो हम लिटरेरी टर्म्स का नोट्स, बाकी तो एलटी ग्रेड का है वो आपके काम आएगा नहीं, है ना। जी नहीं। हाँ बाकी जो है जैसे लिटरेरी टर्म्स की जो बात है, तो लिटरेरी टर्म्स में हमने एक मूवमेंट का नोट्स बढ़िया बनाया है, लेकिन अब सिर्फ इसको भेजेंगे तो आपके लिए महंगा पड़ जाएगा। तो एक काम करते हैं कि अभी और 2
पोइट्री का रेडी हो चुका है और इसके अलावा जो है आपका प्रोज का भी रेडी है। 2 और रेडी करने हैं, ड्रामा एंड नावल, तो वो भी रेडी हो जाए तो इकट्ठे मंगाइएगा, ठीक है, चारों। जी सर। जी सर। ठीक है, तो लिटरेरी टर्म्स पे आप लोग के लिए बहुत बेहतरीन नोट्स अब एकदम फाइनल फॉर्म में चल रहा है, तो बन जाएगा तो आप लोग लिटरेरी टर्म्स के लिए वो नोट्स मंगा लेंगे। जिनके पास भी नहीं है तो आपके पास वो कंप्लीट एक पैकेज हो जाएगा, आप लोग उसी से प्रिपेयर कर सकते हैं, LT TGT PGT सारे लोग। चलिए और बताइए, और किसी का कोई डाउट है भाई? TGT UGT वाले, LT ग्रेड की तो पूरी बात हो चुकी है। LT ग्रेड वाले भाई रेडी हैं, सबको समझ में आ गया भाई? LT ग्रेड वालों कोई कुछ पूछना तो पूछ लो, सारा चीज क्लियर है, कैसे लिखना है, कितना मिनट है, सब मैं बता चुका हूँ। अब कर लेंगे आप लोग क्या? आप लोग कल से स्टार्ट करेंगे LT ग्रेड वाले, जितने भी लोग 70 प्लस हैं, कल से आप सभी को स्टार्ट करना है। आर यू रेडी? कल से एकदम लग जाइए, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं चाहिए हमें, और कल से एकदम सर, एक तैयारी चीज में और- लग जाए। हाँ हाँ सर, ये पूछ रही थी कि आपका नोट्स और MH अब्राहम्स अगर मतलब लेकर के मैं चलूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा? ज्यादा बेटर है वो तो मैं बता ही चुका हूँ, लेकिन ये डिपेंड आप लोग के अलग अलग लोगों पे डिपेंड करता है ना। देखो जैसे सबसे मैं अपने ऑथेंटिक सोर्स मैं ये कह रहा हूँ कि आप कैसे मैनेज कर पा रहे हैं, इट्स ऑन यू, ठीक है। हाँ ओके ओके सर। तो ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप पता चले कि MH अब्राहम और आप पद्मजा अशोक भी लेके चल हाँ, सकते हैं तो इट्स ऑन यू। वो तो आप जितना मिलाएंगे ना वो तो स्वाद है जितना हाँ, मिला yes, दीजिए, sir. लेकिन बात ये कि मिला पाइए, ये सबसे बड़ी चीज है हाँ ना। सर, कई बार क्या होता है, हमने अपने ऊपर इतना बोझ ले लिया कि हम दब गए, तो भी नहीं ठीक है। इसीलिए ना बहुत हाँ। ज्यादा नहीं, सिर्फ मैं सोच रही हूँ कि मैं रिफर सिर्फ आपके नोट्स और जो MH मोस्ट अब्राहम्स पे। ऑथेंटिक बुक है वो है MH अब्राहम। तो अगर आप ऑथेंटिसिटी के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं नोट्स को तो बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। ओके 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 सर, थैंक यू चलिए सर। सर चलिए। एक चीज और, फिर भी कब तक हो जाना है सर इसका मीन्स, मतलब अभी मई से पहले नहीं होना है ना। मई मई से तक पहले कोई जाएगा? सवाल नहीं है। हाँ मई तक जाएगा, अच्छा, 3-4 महीना आपको मिलेगा, 4 महीना कम से कम। तो ये TGT वगैरह ये सब और लग ये रहा है कि सब बस उधर आ वही। जाएंगे, सब ये सब आ जाएंगे। अच्छा, हाँ तो आप तो बस वही है। आपको अब देखो मैं बता दूं, जितने भी तैयारी करने वाले हैं LT ग्रेड की, जिनके भी 70 प्लस हैं, उनको क्या करना होगा, वो डेली 1 आवर उनको वकैब पढ़ना पड़ेगा। मतलब आप छोड़ नहीं सकते, आप डेली 1 आवर ग्रामर करना होगा, ठीक है। 1 आवर वकैब, 1 आवर ग्रामर, और डेली 1 आवर लिटरेरी टर्म्स। ये 3 घंटा आपकी जिंदगी का पार्ट एंड पार्सल होना चाहिए। अगर आपने ये 3 घंटा डेली नहीं कर रहे हैं तो कल आप सिर्फ रोएंगे, फिर हम आपका कोई मदद नहीं कर पाएंगे। हेलो सर, ग्रामर में कैसे क्वेश्चन आएंगे रिटर्न में? अभी तक ग्रामर की संभावनाएं कम है, जो पिछली बार आया था उसमें ग्रामर वगैरह से नहीं आया था क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन चूंकि आपके सर LT, वही लेटर राइटिंग वगैरह, हाँ रिलेटेड मैं राइटिंग, बता ऐसे रहा हूँ, राइटिंग। ओके सर। अगर वो कुछ आना चाहता है तो लेटर राइटिंग से रिलेटेड वो पूछ सकते हैं कि लेटर एप्लीकेशन फॉर जॉब हो गया, या फिर आपके कोर्स में जो भी लेटर राइटिंग में तो सब कुछ हो गया, लेटर टू प्रिंसिपल हो गया या लेटर टू एडिटर हो गया, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो तैयार तो आपको रहना है। मैंने आप लोग को ऑलरेडी लेटर राइटिंग पे नोट्स दे दिया है, तो आप उसे वीडियो ऑलरेडी आपके पास है, तो एक बार आप लेटर राइटिंग से रिलेटेड भी प्रैक्टिस करते रहना है आप लोग को, ठीक है। इसी तरह आपको डायलॉग राइटिंग भी आ सकता है, आपको कॉन्टेक्स्ट दे देगा कि राइट अ डायलॉग बिटवीन 2 फ्रेंड्स, ठीक है, और वो कोई सिचुएशन आपको दे सकता है, ठीक है। तो आपको उसके लिए भी रेडी रहना पड़ सकता है। मतलब क्वेश्चन पे बनाना चाहे तो कितना कठिन ना बना ले वो। तो एक तो ये हो सकता है, हालांकि इसकी संभावनाएं कम हैं, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि क्या सिचुएशन हो सकता है डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में। तो एक ये हो गया, लेकिन इससे एक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, एक तो ये। दूसरी नंबर पे है और क्या हो सकता है, जैसे आपके कोर्स में ट्रांसलेशन भी है, तो आपको एक ट्रांसलेशन लॉन्ग में तो नहीं, शॉर्ट में एक ट्रांसलेशन का पैसेज दे सकता है, एक ट्रांसलेशन का पैसेज दे सकता है इंग्लिश या हिंदी में, और आपसे कहेगा कि आप इसको ट्रांसलेट करिए, ये भी हो सकता है।
तो ये इसके लिए भी हमें तैयार रहना है। तो हमने आपको बताया ना, एक लेटर राइटिंग हो गया, डायलॉग राइटिंग हो गया, और एक आपका पैसेज कोई दे सकता है जिसका हमें से ट्रांसलेशन पूछ सकता है। एक और मुझे जो संभावना लगती है, मैं सब लेवल पे बता दे रहा हूँ, एक आपको पैसेज दे सकता है और उस पैसेज से आपसे 4 क्वेश्चन 2-2 नंबर के पूछ सकता है, या 8 नंबर के, वो जैसे मन करे वैसे 8 क्वेश्चन पूछ सकता है पैसेज से, ठीक है, वो भी हो सकता है, वो पूछ ले। हालांकि ये सब संभावनाएं हैं। जो आपसे पूछेगा वो मेरे ख्याल से पूरी तरह से लिटरेचर ही पूछेगा, लेकिन हम संभावनाओं को भी तैयार करके चलेंगे, हम आपको हर तरह से रेडी करके चलेंगे, ठीक है। वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने जाने की संभावनाएं बहुत कम है। अगर वोकैब से रिलेटेड उसे क्वेश्चन पूछना ही होगा तो वो पैसेज से ही पूछ लेगा, वो पैसेज में ही आपको एक पैसेज दे देगा और उसी से रिलेटेड आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा उसी में वोकैब के भी क्वेश्चन वो पूछ लेगा। ये संभावना हो सकती है। ठीक है। अच्छा, एक विशेष परिस्थिति हो सकती है कि जैसे कि आईएएस पीसीएस में जो उनका मेंस होता है उसमें एक पेपर वो लेते हैं ना, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का, तो उसमें वो लोग कई बार दे देते हैं कि आपसे उन्होंने दे दिया कि भैया 4 पैसे दे दिए, एक्टिव वाइज उसका पैसिव वाइज पूछ दिया, लेकिन ये जो क्वेश्चन का पैटर्न है ना, इसमें वो सब वैलिड नहीं है। जैसे ये सीधे पूछा शब्द सीमा 125 तो आप बताइए, शब्द सीमा जब 125 उसने दे दिया तो इसमें एक्टिव पैसिव वाइज वो कैसे पूछेगा, इसमें वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे पूछेगा। तो पूरी तरह से संभावना ना के बराबर है कि वो एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वोकैबुलरी बेस्ड ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे। और चूंकि शब्द सीमा 125 दिया है तो इसका मतलब वो पैसेज भी नहीं पूछेगा, क्योंकि अगर पैसेज पूछेगा तो उसमें 5 क्वेश्चन उसने पूछा, 4 क्वेश्चन पूछा, तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसका आप 125 वर्ड में जवाब देंगे। इसका मतलब पैसेज भी डिलीट हो गया मामला। अब जो ऑप्शन आपके पास बच रहा है वो केवल एक चीज क्या बच रहा है, दैट इज लेटर राइटिंग या फिर डायलॉग राइटिंग। और दूसरे नंबर पे बस यही एक ऑप्शन बच रहा है। ट्रांसलेशन भी एक हद तक गायब हो जा रहा है। रीजन ये है कि ट्रांसलेशन तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उसमें क्या होगा, उसका उत्तर कैसे पूछेगा। तो फिर भी एक विशेष परिस्थिति में हम मान सकते हैं कि ट्रांसलेशन दे दे, 120 से 25 वर्ड में है और आपको उसी का इंग्लिश या हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो जो ज्यादा से ज्यादा संभावनाएं बन सकती हैं वो सिर्फ इन तीनों की बन सकती हैं, और ये तीनों कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है। समझ में आ गया सभी को? तो मैंने आपको पूरी संभावना बता दी है कि क्या हो सकता है। नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। रुचि कह रहे हैं कि डिफाइन करने को बोल सकता है। ग्रामर में आपसे थ्योरी राइटिंग तो करवाएगा नहीं हो। तो आप मान के चलें कि ग्रामर सेक्शन से अब आपके क्वेश्चंस बहुत नाम मात्र के आने वाले हैं, न के बराबर आने वाले हैं। जो आएगा वो लिटरेचर ही आएगा, ठीक है। और जो आ सकता है वो मैंने लेटर राइटिंग, डायलॉग राइटिंग और मैक्सिमम टू पैसेज, बस यही। और अब तक के जो पैटर्न हुए हैं ना आपके पेपर के, तो उसमें भी उन्होंने सिर्फ लिटरेचर ही पूछा है, तो हम उसी को आधार बना के चल रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि एलटी ग्रेड वालों की सारी मतलब दिक्कतें सॉल्व हो गई हैं। और आप सभी को बता दूं कि एलटी ग्रेड वाले बड़े प्रसन्न हो जाएं, क्योंकि ये आप लोग बड़े लकी हैं, केवल 2 ही प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, जबकि पीजीटी जीआईसी में थोड़ा डिफिकल्ट है। जीआईसी में 3 प्रकार के क्वेश्चन है और आप में सिर्फ 2 प्रकार के क्वेश्चन। और आपके लिए आसान क्या है, मात्र 125 वर्ड में लिखना है, 200 वर्ड। 200 वर्ड केवल एक पेज में ही 200 वर्ड हो जाता है। मतलब आप केवल मेन चीजें भी देंगे तब भी 200 वर्ड हो जाएगा। 125 वाले में तो आपको सोचना पड़ेगा मेन दे क्या हम। तो ये समझ लो कि ये पूरी तरह से फैक्चुअल राइटिंग होने वाली है। और फैक्चुअल राइटिंग बहुत आसान होती है, क्योंकि आपको केवल फैक्ट्स तो डालना है, वहां पे ग्रामर और ये सब चीजें थोड़ी बहुत मिस भी होंगी तो चलेंगी। डैश करके, लाइन लगा के आप लिख के काम चला लेंगे। स्केच भी बना सकते हैं, मतलब बहुत कम शब्दों में ज्यादा बात कहनी है ना, तो आपको बहुत ज्यादा कोई हाईली आर्टिफिशियल होने की कहीं से कोई जरूरत भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि एलटी ग्रेड का मेंस बहुत आसान है निकालना, क्योंकि 125 और 200 वर्ड में लिखना बहुत सबसे आसान है लिखना, बहुत आसान है लिखना। कोई भी व्यक्ति पढ़ के लिख सकता है।
ठीक है, बस वो बेसिक सा आइडिया पे काम करना है कि मेन चीजें आपकी प्रैक्टिस हो, जो टर्म है, जो प्लेस हैं, जो राइटर्स के नेम हैं, वो सब आपके तैयार होने चाहिए अच्छे से। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बातें हो गई हैं मेरे ख्याल से। राजकुमार जी, बिल्कुल प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, उसका जवाब ही नहीं देते हैं आप लोग। मैं पूछ रहा हूँ कौन कौन एलटी ग्रेड का बैच ज्वाइन कर रहा है मेंस का, सब ऐसे ही यस सर, रेडी। जवाब ही नहीं आ रहा है मेरे को। जी सर, रेडी। हम लोगों ने जवाब दे दिया, आपने देखा नहीं। अच्छा, आप फिर हाँ, से हमने देखो, मैसेज के थ्रू रिस्पॉन्स किया है। फिर से सबने कर मैसेज दीजिए, किया है। फिर से करिए। मैं आप लोग को तो बताने में लगा हूँ, आप लोग रेस्पॉन्स कर दिए उधर। अब मैं देखूं, विजय लक्ष्मी हैं, अंजलि दीक्षित हैं, ठीक है, रुजदा हैं, 3 हो गए, काजल साहा 4 हो गए, कोमल गुप्ता 5 हो गए, चंचल जी 6 हो गई, वैशाली प्रजापति 7 हो गई, प्रीति 8 हो गए, दिव्या अग्निहोत्री 9 हो गई। अभी 9 लोग हैं केवल, बाकी लोग कहाँ हैं भाई? सोनम 10 हो गई, रुचि 11 हो गई। फीस पहले ही बता दे रहा हूँ, नहीं तो बाद में पता चले आपको चक्कर वक्कर आ जाए। हाँ, फीस आपके पूरे बैच की 10,000 रुपये रहेगी। हाँ, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम न्याय कर पाएं, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत है, बहुत काम है। और आप सभी को मैंने बताया था कि इसमें जो है आप सभी से लिखवाएंगे, हम सामने प्रैक्टिस भी करवाएंगे, और साथ ही साथ आपके आंसर की राइटिंग भी हम आपको बताएंगे कि क्या कमियां रह गई हैं। इसके अलावा जो है आप सभी को एक और बड़ी चीज़ जो मैंने बताया कि मैं अपने कई साथी जो प्रोफेसर्स हैं उनकी भी क्लासेस लगवाऊंगा, तो उनको भी कुछ मदद करनी पड़ेगी भाई, बुलाएंगे तो, है ना, सेवा सत्कार करना पड़ेगा उन लोग का भी। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी, तो उसके हिसाब से आपका बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। ये आपको समझ लो कि कम से कम 10-12 तो हम अलग अलग लोगों को लाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। 10-12 लेक्चर से गेस्ट लेक्चर, तो काफ़ी उसमें खर्चे होंगे मेरे। नोट्स एकदम बिल्कुल निश्चित तौर पे नोट्स मिलेगा दिव्या जी, एकदम आपको टॉपिक वाइज नोट्स मिलेगा। इसको तो फिक्स ही करवा लो रुचि, कंसेशन मत करवाओ, नहीं तो फिर कंसेशन में फिर वो गड़बड़ हो जाता है। आपको करें, फिर किसको ज्यादा करें, किसको कम करें, फिर बड़ी दिक्कत है। हमारे पास बाहर के बच्चे कौन आ रहे हैं? बाहर वाले तो सब ऑलरेडी यूट्यूबर इतने पड़े हुए हैं, एमसीक्यू वाले, वही सब फंसा लेंगे सब। अगर हमारे पास 100 बच्चे आ जाएं तो हम अभी इसको फीस को कम कर देंगे, ठीक है। तो ये है, अब कुछ नहीं कर सकते इसमें। जो फीस है फिलहाल जिनके पास 100 भी आएंगे वो भी 10,000 से कम नहीं रखने वाले। हमारे पास चाहे जितना है, हमारा फीस यही है, फिक्स है। तो आप लोग देख लीजिएगा इसमें। तो नीतू कह रही है सर मोस्टली आप ही लीजिएगा, आपका पढ़ाया ज़्यादा समझ में आता है, आपकी आदत हो गई है। हम ही लेंगे ज़्यादातर, उन लोगों को बीच बीच में ऐसे रख देंगे, कभी कभी मूड चेंज कर लेंगे आप लोग, इस तरह से आप लोग का मूड चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा मन बहल जाएगा। ऐसा अलग अलग स्टाइल के लोग आएंगे, थोड़ा स्टाइल आप लोग देख लेंगे। ये रहेगा, बाकी चिंता ना करें आप लोग। तो ये है, और किसी को कुछ कहना है भाई? आंसर राइटिंग आप ही तो करेंगे, आप नहीं करेंगे तो कैसे फायदा होगा आपको? आपको करवाएंगे यही सामने सामने करवाएंगे। अगर हम आपको नोट्स दे देंगे सिर्फ डायरेक्ट, तो फिर आप बेकार हो जाएंगे ना। हम तो आपको करवाना चाहते हैं, नोट्स भी देंगे हम आपको, लेकिन आपकी आंसर राइटिंग हम करवाएंगे, ये सबसे बड़ी चीज है, ठीक है, ताकि आपको फायदा हो। सबसे बेस्ट वो काम होना, बिल्कुल ऑन कैमरा होगा एकदम, सभी का कैमरा ऑन हो जाएगा। जिस समय आंसर राइटिंग करवाया जाएगा आप अपने टेबल पे बैठ जाएंगे, ठीक है, और उसी समय होगा। आइडिया हम सब देंगे आपको, आइडिया देने के बाद ही आंसर राइटिंग बोलेंगे लिखने को, ऐसे हवा में नहीं देंगे। पहले आपको बताएंगे कि आपको लिखना क्या है, सब कुछ आपको समय भी दे देंगे 1-2 दिन का,
जैसे मान लीजिए कि हम जिस पे आंसर राइटिंग करवाने वाले हैं, जैसे वीक में 1 या 2 दिन या 3 दिन आपकी आंसर राइटिंग रहेगी। तो हम आपको एक एक दिन बताएंगे, पहले पहले तो कुछ क्लासेस चलाएंगे, आपको समझाएंगे कि करना कैसे है, फिर उसके बाद हम आंसर राइटिंग 1 हफ्ते बाद शुरू कराएंगे, ताकि आप करते रहेंगे और इस तरह से आप उसी आइडिया पे करके, ठीक है। बिल्कुल। चलिए, तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया है। अब आप भाई थोड़ा टीजीटी पीजीटी पे बैक हो जाते हैं। टीजीटी पीजीटी पे आ जाते हैं। टीजीटी पीजीटी वाले बताएं भाई, कौन अभी क्या पूछ रहा था? सर हम टीजीटी पीजीटी लेक्चर देन राइटिंग, हाँ लेक्चर के बाद राइटिंग करिएगा। अंजलि फिर देखो आप समझ नहीं पाते हैं। अगर आप ये बताओ, मैं कहूँ कि अच्छा ये चीज मैंने बताया, आपको क्या याद रहेगा? तुरंत आप लिख पाओगे तुरंत अगले पल? नहीं हो पाएगा ना। ये मतलब ऐसे नहीं होता है, आपको पहले ही करना पड़ेगा। आपको हम पहले बताएंगे जिस चीज पे लिखवाना है, ठीक है। थोड़ा सा समय देंगे आपको, तब आप लिख पाओगे। चलिए, और बताएं भाई, दूसरे लोग बताएं भाई, टीजीटी पीजीटी वाले। राजकुमार जी आप क्या कहना चाहते हैं? माइक ऑन है, बोल दीजिए आज जल्दी। गुड इवनिंग सर। बोलिए राजकुमार जी। हाँ सर, हम तो ये चाह रहे थे कि टीजीटी का भी एक बैच लॉन्च कर दीजिए सर। अरे फीस यहाँ बिल्कुल रखिएगा जो है। सब लोग रो रहे हैं, आप समझ रहे हैं क्या? अब हमको गाली वाली सुनवाएंगे क्या सबसे? अरे कहेंगे सर, कहीं भी सब कोई कहेंगे पढ़ेगा तो लगेगा। और सर एक चीज है बताएं कि बिना वो आपके अनुसार हम लोगों का तो मन ही नहीं लगता। और आपसे डिटैच हो जाते हैं तो फिर वो थोड़ा सा ना लूप हो जाता है, पढ़ाई में जो है छूटने लगता है। आप जब भी जुड़े रहते हैं तो बहुत मजा भी आता है और एकदम लगता है बहुत आ रहा है। नहीं, और ये तो पढ़ते हैं है ही। लगता है देखिए, खूब एक पढ़ते बैच जा तो रहे हैं, आप खूब लोग का समझ में आ रहा है सर। चलते रहना चाहिए, लेकिन बात यही है कि यहाँ समस्या है ना। यहाँ जी एस्पिरेंट, जैसे अभी मान लीजिए कि आप ट्यूशन पढ़वा रहे हैं अपने बच्चे को, या पढ़ रहे हैं कहीं पर भी, तो जब आप पढ़ेंगे तो चाहे आप एक बार पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ेंगे तो भाई टीचर आ रहा है, टाइम दे रहा है, तो भाई उसको देंगे कि नहीं देंगे जो टीचर पढ़ाएगा, है कि नहीं? जी, तो बिल्कुल सर, ये बिल्कुल वो बात तो देना पड़ेगा। हमारे एस्पिरेंट नहीं समझ पाते हैं। प्रॉब्लम ये है। अब जैसे कोई बैच स्टार्ट की जाएगी तो कहेंगे इसमें भी हमको लेना है क्या, इसमें भी हमको पैसा देना है क्या? ये सबसे बड़ी समस्या है। फिर हाँ उसे जी जब सर। ये हम जब सुनते हैं तो फिर हम कहते हैं अब चलो साइड में कर दो, सब कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो ये चीज है और कोई बात नहीं है। नहीं तो रिवीजन बैचेस तो आपके चलते रहने चाहिए। हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ठीक ठाक बच्चे हों तो हम बहुत नॉर्मल वे में 500 रुपये मंथली करके कर सकते हैं। एक मंथली अमाउंट रख दिया जाए, 500 रुपया सबको मंथली देना है, 20-30 लोग रेडी हो जाएं, ठीक है। और 500 रुपया जी, कोई बहुत ज्यादा भी नहीं है। और ये बहुत बढ़िया है। इससे ये भी सस्ता सही क्या हो रहेगा सर। सकता है? मंथली टाइप का एक बैच चला दें आप सबके लिए, हाँ केवल हाँ हाँ सर, पाँच सौ बिल्कुल कोशिश रुपया करते हैं। मंथली। अब बताइए, जी 500 रुपया तो अब कोई टीचर जाता है पढ़ाने, 500 तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी जी मैं कह रहा हूँ कि 500 रुपया अगर आपको मंथली चार्ज देना हो और आपका रिवीजन होता रहे कुछ ना कुछ अलग अलग, तो आपको मजा आता रहेगा। डेली आपकी 1.25 घंटे की, ज्यादा लंबी क्लास भी ना हो, 1.25 घंटे की, 1 घंटे की क्लास हो लगभग। और आपसे कुछ न कुछ मुद्दे पे हम बात करते रहें। कभी किसी टॉपिक पे एमसीक्यू लेके आ जाएं, कभी किसी टॉपिक पे लेके आ जाएं, आपसे कुछ प्रश्न पूछें, कुछ करवाएं, यस आपको सर। मजा आने लगेगा। सर आप रहते हैं ना सर तो वो ठीक रहता है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ सर कि क्या है कि जब आपका क्लास नहीं था तो थोड़ा सा ढुलमुल रवैया हो जाता है। और आपके नाम पे हम लोग भले जैसे मनीष सर पढ़ा राजकुमार रहे थे जी, तो ये उस समय प्रपोजल, रेडी हो जाते थे सर बैठ के आधा घंटा पहले राजकुमार जी, से कि पढ़ना है। ये तो है, ये करवा प्रपोजल, दीजिए सर। ये देखिए सर, प्रपोजल सब लोग जो सहमत है हमसे। गुलाब जी, राजकुमार जी, ये जी प्रपोजल सर। आप लोग ग्रुप में रखिए और आप लोग ही बात जी करिए, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो पाती है, समझ रहे हैं आप? अगर सब लोग जी सर। तैयार, अगर मुझे मतलब 20 लोग भी रेडी हो जाएंगे, तो आई एम रेडी। मैं आप सबके लिए बेहतरीन तरीके से कुछ करूंगा। और आप वो रिवीजन क्लास के नाम पे रहेगा, रिवीजन क्लासेस, ठीक है। और रिवीजन क्लास रहेगा, 500 रुपया पर मंथ सबका लगेगा। जी और सर, जितने महीने आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक आप लोग रिवीजन करते रहिए, हैं। बिल्कुल सर। और हम आपको तब तक एकदम मास्टर ब्लास्टर बनाते रहें,
अलग अलग तरीके से। हमारे पास तो इतना मटेरियल है कि लेने हम रोज ही लेके आए तो मटेरियल कभी कम ना हो, इतनी किताबें। शेक्सपियर टीजीटी पे तो मेरे पास बहुत ज्यादा मटेरियल है, इतनी मैंने ऑथेंटिक किताबें, इतना मटेरियल वर्ड्सवर्थ, गाल्सवर्दी, इन सब पे रखा है कि वो खत्म ही नहीं हो सकता। लेकिन बात यह है कि बच्चे ही नहीं देने वाले हैं, तो वो चीज है। तो अगर आप लोग आए तो फिर रेगुलरली चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या है नहीं, ठीक है। और हम ग्रुप में तो सब लोग सुन ही रहे हैं, जो लोग नहीं सुन रहे हैं तो कल मैसेज डाल देंगे। अभी आप हम लोग मैसेज कर हमारे लीजिए। डाल इससे देंगे। जानते क्या है, जो जिन लोग का एलटी ग्रेड के मेंस में भी हो गया है उनको भी जरूरत है इस तरह की एक क्लास की। क्यों? क्योंकि सर अगर मेंस वाले अचानक, भी पहले खड़े हाथ खड़े करके आ जाएंगे, हाँ वो सोच नहीं, रहे हैं वो इसलिए कि जरूरत घर है से ना तैयार करेंगे क्योंकि सर लिटरेरी टर्म, और वो जितने भी हैं सब, और उसके साथ साथ सोचेंगे टीजीटी का भी तैयार कर लेंगे। ये क्योंकि जहाँ तक उससे, मेरा मानना है सर, हाँ एलटी उससे वाले लोग उनको खुद ही बताएंगे। इससे उनको फायदा क्या है ना, कि जैसे मान लो कि अब वो एलटी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें उनका ज्यादा टाइम जा रहा है, तो अगर 1 घंटे में इधर उनका डेली रिवीजन हो रहा है तो इससे बढ़िया क्या चाहिए। क्योंकि टीजीटी का एग्जाम कभी भी हो सकता है, उनके मेंस के देखिए टाइम सर, पे ही सब होगा। लोग हंस रहे हैं सर, अंजलि जी, सर रुचि जी, सब लोग, कि मैं सही कह रहा हूँ सर, सब लोग सहमत है मेरी बात से। सर एलटी वाले सर अलग से टीजीटी नहीं कर पाएंगे सर, आपके साथ वही, मिलकर कर लेंगे। ये तो सही बात है। तो आप लोग वही आपस में बात कर लीजिए, हमें भी बड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि आप लोग जुदा जुदा हैं और सबको मुझे पता है, मुझे आप सब लोग सिलेक्शन एकदम, मुझे इस बार पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैं टॉप 100 में अपना, हमारे 20 से 30-40 बच्चे हो सकते हैं और एकदम आप चंचल लोग जी, कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि टॉप 100 वाला काम हो जाए। काम कैसे होगा कि आप लोग अभी जैसे देखिए कितना गलत लोग करके आ गए। गलत सिर्फ इसलिए हो जा रहा है कि रेगुलर टच में नहीं है लोग, अपने मन से पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, तो चीजें दिक्कत हो रही हैं। सर तो आपका गाइडेंस रहता है ना, सर तो बच फिर भी जानकारियां बिल्कुल जो है वो सही ढंग से रहते हैं, हम लोग सर सही वे में रहते हैं सर, डिरेल्ड नहीं होते, मेन बात है। चं, इसलिए चाहते हैं कि आप जो चंचल है जी कम से साथ कम देखिए। दीजिए। हाँ, नहीं बस गुलाब भैया बताइए, सुन रहे हैं आपकी बात। अरे सर बोल रहे हैं ना सर, तो उसमें भी तैयार हो जाइए। हम तो तैयार है भैया, आ चंचल जाओ। जी तैयार चंचल रहते जी, हैं, चंचल जी का कोई मैं तो दिक्कत ऑलवेज नहीं। रेडी भैया। जी जी हम्म, और सर ये टीजीटी में जी सही जी कर रहे हैं कि 500 रुपये मंथली रहेगा, तो ये देने में भी कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा मंथली चलता खर्चा नहीं रहेगा, है, देते आप रहेंगे। लोग कर जी सर। सकते तो हैं। अपना पैसा राजकुमार सर आप हमें दे दीजिए जब तक, फिर हम हमें लग जाएगा तो आपका पूरा पैसा वापस कर देंगे। कौन कौन बोल रहा है भाई, हम तो सुन नहीं रहे हैं। अच्छा चंचल मैम है, ठीक है, ठीक, मिलेगा मिलेगा बिल्कुल। क्योंकि आप अभी जॉब में हैं, हम लोग तो बेरोजगार हैं, बताइए। हाँ, बात तो अभी अब सही आप है। चंचल जी, अभी अरे राजकुमार बाबू जी के एलटी ऊपर होने जा रहे भाई। सारे लोग पीछे हाँ आ देखो, जाएंगे। राजकुमार जी जो है किसका किसका देंगे ये बताइए। राज गुलाब जी भी सही कह रहे हैं कि आप लोग एलटी होने जा रहे हैं, हम लोग तो अभी जूनियर में नीचे हैं जो है। अरे तो आपके पास पहले से भी सोर्स ऑफ इनकम है ना, हाँ हाँ हाँ, सही बात है। वो भी सेव आपको, कर। आप लोग चाहते हैं क्या कि घर से बाहर निकलवा दिए जाए? हाँ नहीं हम, राजको हमारा पे कर दीजिएगा, फिर मेरा जब एलटी में हो जाएगा तो आप हम आ जाएंगे देने पापू ऐसा। आपको पता है जो सर के बातें ब्याज जो है सूद मैं लगा के दे लाइव देंगे। स्पीकर पे रखता हूँ, और हमारी मिसेज सुनती रहती हैं, वो मजे रहती हैं। हाँ तो ये तो अच्छी बात है, कम से कम छुप के तो नहीं बोल रहे हैं, सुन रही होंगी मैम तो कहेंगी ठीक है दे दीजिए, बेचारी कोई मांग रही है तो। सही बात है। मैं, अरे मैम जो है तो खूब कहती हैं कि सर जी जितना परेशान होते हैं उतना आप लोग नहीं सीरियस होते जो है। वो तो कहती हैं कि जब सर आ जाते हैं तो तब देखती हूँ कि आप पेन के कॉपी लेके भागते हैं। मैं सर बच्चों को चुप करा देता हूँ, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, मेज पे बैठने जा रहा हूँ। तो हमारे यहाँ बड़ी भगदड़ मचती है, सबको चुप कराना पड़ता है कि मेरा क्लास चलने जा रहा है, शांत हो जाओ बिल्कुल। ये देखो चीजें अब होती है। इनको दिव्या जी भी आ गई, अंजलि जी भी आ गई, सब लोग कह रहे हैं कि भैया राजकुमार जी दीजिए, मेरा भी रुचि भी आ गई है, दो भैया। सबका कम से कम 5,000 अमाउंट आपको हर महीने पे करना कब पड़ेगा राजकुमार सर, रेडी है आप? राजकुमार जी अभी पीछे हो अरे तो जाएंगे, 15 कहेंगे लाख का सर लोन छोड़ लिए है, दीजिए वो अब। भरना पड़ता है मंथली 32,000। जिसका जितना इनकम है सबका अपना खर्चा है, सबका जिसके पास जो आ रहा है सब सेट हो जाता है कि भैया कहाँ कहाँ सर मैं खर्चा। अपना खुद दूंगी, हाँ मैं अपना अपने आप दूंगी, मैं राजकुमार सर से नहीं लूंगी। चलिए अंजलि, एक तो दिलेर निकला कोई। चलो अंजलि जी के लिए तो तालियां हो जाए स्पेशल। अभी जितनी महिलाएं उनमें पहला हिम्मत करके बोली हैं। जी चलिए आलोक सर जी, आप कुछ नहीं बोल रहे, आप भी बोलिए। इस मीटिंग में बिल्कुल सब लोग खुल के बोलते हैं तो बढ़िया लगता है, आप भी खुल के बोलिए सर। बोलिए भाई, ये सही बात आलोक है। सर है, परवीन सर है, आवाज सुनील नहीं सर है, आ पता रही नहीं है लोग भाई, कहाँ गए। आवाज हाँ, नहीं, बोलना चाहिए सबको। आवाज निकालिए आप लोग। नीतू मिश्रा आप बोल अरे आप। परवीन सर कहाँ है अच्छा आप?
अरे राजकुमार जी और गुलाब जी, आप लोग अभी काउंट कराइए कितने लोग हो रहे हैं, ताकि फिर तुरंत अगले हफ्ते से ये भी काम शुरू हो जाए। दो चीज एक साथ शुरू हो जाएगा, एलटी ग्रेड का मेंस और टीजीटी का ये जी भी। ये 27 लोग तो बिल्कुल होंगे जो जो लाइन में है ग्रुप में सर। जो भी कीजिए थोड़ा सा जल्दी से जल्दी कीजिएगा। अरे जल्दी ही तो कर रहे हैं, अब कहाँ देर कर रहे हैं बताइए। हम तो खुद ही आपके मेंस का बैच सर अनाउंस कर आप चुके देखिए हैं। तो मिश्रा पे जा रहे हैं हो सर। रहा था एक 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 आपके बिना कहे मैंने कल रात में ही पूरा प्लान करके बैच अनाउंस कर दिया। सर आप सर तो 1 तारीख की ना, हम तो अधीर हो गए। हम तो सोच रहे थे सर कि जैसे ये खत्म हो सर अगले दिन से फिर शुरू कर दें। सर काउंट जबकि जिस तरह करिए सर। चलिए आप बताइए, मैं काउंट लिख रहा हूँ। 27 चलो रुक जाइए, बताइए 27 में आप। सर को छोड़ दिया जाए, 26 लोग हैं इस समय अरे ऐसे ऑनलाइन। मत बोलिए। राजकुमार जी, चलिए अंजलि जी जी सर। हो गई, राजकुमार जी हो गए, राजकुमार हाँ हाँ भैया, गुलाब जी हो गए, राजकुमार जी गुलाब जी हो बिल्कुल गए। बताइए गुलाब जी, काउंट कर मैं रही सुन रहा मांग हूँ। हाँ तो चलिए, यादव जी कर रहे हैं। मैं लिख रहा हूँ, स्क्रीन पे जिसको देखते जाइए। ऑब्जेक्शन हो वो अपने आप से बोल देगा कि नहीं आना हाँ है। बिल्कुल। हाँ, नीतू पहले जी मिश्रा, वाले बोलो उसमें। नीतू मिश्रा हो गई। टीजीटी का तो आप लोग जब कहो उसी दिन से शुरू कर अरे देंगे। ये नो देखिए सर ने आप लोगों के बिल्कुल बिल्कुल। फैसिलिटी के अनुसार, जैसे कि ट्यूशन लगना हो उस नी तरह का कर दिया है कि भाई ट्यूशन में प्रियंका वर्मा, कोमल पढ़ते गुप्ता। रहिए फिर अच्छा अगले महीने। प्रियंका वर्मा सर हो गई। प्रियंका वर्मा, कोमल गुप्ता, संजय कुमार, अच्छा कोमल गुप्ता नोट कर रहा हूँ। हम भी हैं। कोमल गुप्ता, वैशाली प्रजापति हैं, संजय रुचि भी वैशाली, है। वैशाली। रुचि तो हंस रही हैं, अभी कुछ बोल नहीं रही हैं कि यस और नो। हंस वो रही, मेरी सोच रही बात हैं पे कि हंस रही है सर, हमको हाँ फंसा बिल्कुल सही देंगे बात लोग, कह लग रहे रहा। हैं, बात बड़ी अच्छी चल सोनम रही हो है। अरे गई। सर इनके दोनों हाथ में लड्डू है सर, इसलिए हंस रहे हैं ना। चलिए अभी तक 10 लोग हुए हैं, सर मेरा नाम नहीं लिखा इसमें अभी आपने। तो आलोक सर, बोलते जाइए। जी सर। आलोक हो गए, चलिए अरे आलोक। प्रवीण लोग कहाँ गए सर? प्रेमलता मैम है सर सर। सुनील का लिख दीजिए। हाँ सर सुनील का लिख दीजिए, प्रवीण का लिख दीजिए, आनंद जी का लिख दीजिए। सबको खुद हाँ बोलने आनंद जी का तो दीजिए, कहाँ आनंद ले रहे हैं पता नहीं। सबको बोलने दीजिए खुद। आनंद जी की मिसेज का भी लिख दीजिए। प्रतिभा जी, हाँ हाँ उनका भी लिख प्रतिभा दीजिए। जी। अरे भैया पता चले तो हम लोग। चलिए तो और बताइए। सर 14 हम लोग। लोग जरूर 14 चाहते हैं कि 1 घंटा आपका सर गाइडेंस डेली रहेगा, उसमें हम लोग परमीत भी बिल्कुल है लाइन सर। पे रहेंगे। परमीत जी देख, परमीत जी जी। परमीत जी बोल ही नहीं रही हैं, कहाँ है? परमीत सर हो वो गए। शायद मीटिंग लेफ्ट कर चुकी हैं, बट आप उनका लिख दीजिए। चंचल जी, सर नमिता मैम भी होंगी। हाँ नमिता जी होंगे, बिल्कुल वो तो रेडी हो जाएंगे। आनंद जी आज सो गए क्या आपके लगा? सुपर 20 तो सर हैं भी, सुपर 20 तो है ही। सर सबका नाम जोड़ दीजिए एक बैच में, जिसको जाना होगा भाग लेगा, जिसको रहना होगा रहेगा। सर ऐसे मत काउंट करिए, जब 1 2 आ गए 4 आ गए तो सब आ बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल, चलिए मैं हाँ सबको सेलेक्ट करवा के मानूंगा। जो मैं खुद सेलेक्ट होना चाहता हूँ सभी चंचल जी लोगों के अपना साथ नाम साथ बोल ही नहीं रही नहीं हैं, देख करता। लीजिए। कौन सर? अपना नाम तो आप बोल ही नहीं रही हैं। अरे चलिए मेरा नाम लेने वाले सर ग्रुप में सर देखिए भर गए हैं सब लोग। कोमल से सर लेकर सबसे ज्यादा तो इन्हीं का नाम लिया जा रहा है। भाई सर साहब, जानबूझ के मेरा नाम नहीं नहीं जो लिख रहे हैं। कैंडिडेट है वो खुद नाम ले अपना। 17 लोग हो गए, देखो कुछ लोग भाग गए, अब जिनको नहीं लेना है वो लोग जा रहे हैं। ठीक है, 17 लोग हो गए। 20 तो कराइए आप लोग, 17 हुए कैंडिडेट अभी। 20 के बिना 21 शुभ होता है। 21 करिए। रुचि अभी नाम नहीं ली है। रुचि, रुचि का क्या चल रहा है भाई? रुचि हो गई, चलो हम लिख दे रहे हैं। राजकुमार जी, रुचि जी वैसे दे यस सर। नाम हाँ? अपना। सर प्रवीण सर का नाम लिखा है आपने? नहीं नहीं, सर वो वो भी लेंगे जहाँ वो तक। है यहाँ पे। सुपर 20 या 30 जो भी आएगा ये आपके सभी जो है निकलेंगे। इस बार टीजीटी तो लोग धमाल मचाएंगे। संजय का नाम नहीं सर वो लिखा गया शायद है, संजय का है नाम। नहीं शायद वो भी। अरे तहलका मच जाए। लेकिन सब प्रवीण सर का लिख लीजिए सर, और ले लेंगे। प्रवीण सुनील। सुनील जी का तो ऊपर लिख गया है। अभी 2 लोग और बस देख लीजिए, 2 कौन है और जिनको आप लोग शामिल कर सकते हैं।
और सर इसको तो बस जितने हो रहा है सर, तो इसको 20 21 से शुरू कर दीजिए सर, 21 22 23। आज कौन इसके सा लिए सर डेट है? 1 फरवरी मत करिएगा। सर आज तो 19 हो गई, कम बीत गए सर, अब 20 हो सर गया, आज प्रेमलता 20 होने वाला जी का लिख लीजिए। हाँ, प्रेमलता जी का नाम है। है। और सर नोट्स पे काम सर थोड़ा पहले कर देंगे तो नोट्स सर आपका सर इतना सुनील बढ़िया था सर। सुनील नाम के जी का 2 भी कैंडिडेट है नोट्स ना आपके पहले बैच चाहिए में? सर। लिख लीजिए। सुनील। सर एक्सक्यूज मी सर, सर नोट्स जो है आपका बहुत ही बेहतरीन है, जो भी अब तक मिला है। तो इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि वर्ड्सवर्थ और इन पे जो है गाल्सवर्दी का रिटन आपके द्वारा मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा सर। रुचि कह रही मैं डायलेमा में हूँ। 23 बसंत पंचमी से। प्रियंका वर्मा कह रही है बसंत पंचमी शुरू कर दिया। चलिए ठीक है, 23 हाँ बसंत बसंत पंचमी पंचमी बहुत का सही। दिन बहुत सही है ना, इसी दिन से शुरू करें फिर। जी हाँ, सर। ये बहुत बढ़िया रहेगा क्योंकि मंथली वाला ना मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन मुझे उस तरह से मिल नहीं जी पा रहा सर था कुछ बिल्कुल। हो। और ये आप सबके लिए, चूंकि एग्जाम होता रहेगा, जब होना होगा होगा, आप लोग का काम चलता रहेगा रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ बेहतर। सर मेरा जब मैं किसी दिन नहीं पढ़ता, मिसेज कहती है आज क्लास नहीं चल रहा है क्या, मुझे हम्म, पकड़ लिया जाता है। मैं भी खाली हो जाऊंगी। ये क्या बोल रही है? सर जो कैंडिडेट बच रहा है सर उसमें राजकुमार सर का लिख दीजिए, क्योंकि इनके घर में एक साथ 2 3 लोग सुनते हैं ब्लूटूथ पे रख के। इनके बच्चे भी। हाँ सर, सब लोग इनके यहाँ ज्ञान ले रहे हैं, फीस एक देते हैं। दिव्या तो आपका इनका सर नाम दो नहीं तीन है बार क्या? अच्छा, दिव्या। है। हाँ सही कह रहे हैं, 4 का पैक एक में मैं जो है ना बाबा रामदेव वाले साबुन की तरह दिव्या हो वो गई। वही सर जो बच रहा है उसमें राजकुमार का 4 5 बार लिख दीजिए। राजकुमार जी कहेंगे कि हम ही शुरू करवा रहे हैं, हम ही को सब लोग लपेट दे रहे जी हैं। सर। पिछली बार भी हम ही शुरू करवाए थे ऑनलाइन, जो है बाद में लोगों ने हमसे कहा अलग से कि ठीक था, अभी भी जो कहेंगे बाद में, लेकिन अभी लोग हमें ही 4 बार लपेट रहे हैं। चलिए कोई नहीं, तो लगभग 21 लोग हैं। हाँ, ये 21 लोग का कोई एक स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल में ले ले, मुझे भेज देगा, तो मैं इन लोग का जो है ग्रुप बना दूंगा आज ही। और 21 लोगों से शुरू कराते हैं। दिव्या कह रही ये बताइए कि डबल प्रिपरेशन नहीं है, ये रिवीजन है। ये आपकी पौने घंटे, मतलब 45 मिनट से 1 घंटे की ही क्लास रहेगी, बहुत लंबी क्लास नहीं चलेगी, रेगुलर चलती रहेगी, ताकि आप लोग एक हैबिट में रहें, प्रैक्टिस में रहें। और बहुत सी चीजें, कोई भी कॉमन चीज हम लेकर आ जाएंगे यहाँ पे और आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। बहुत रैंडम टाइप का आपका चलता रहेगा और इससे बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। और इसमें कोशिश करेंगे कि हम आपको सब कुछ देने की कोशिश करें। अच्छा, दिव्या कह रही एक कैंडिडेट का मैं और एडमिशन दिलाऊंगी। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, दिला दीजिए, अच्छी बात है। नाम बता दीजिए दिव्या जी अपने उस कैंडिडेट का, यहाँ हम नोट कर लें। कंचन। अच्छा, चलिए, फी क्या रहेगा फिर से बता दीजिएगा। अरे बता तो दिया, ये 500 रुपये पर मंथ है। जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा आप करते रहें आप लोग, और चलता रहेगा ये, है ना। इसमें ज्यादा आपको ऊपर प्रेशर भी नहीं आएगा। मंथली 500 रुपया कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं। आप ये सोच के इसमें आप लोग जुड़े रहिए, करते रहिए अपना। फी का इशू है उनके साथ। अब 500 रुपये में क्या इशू होगा वो तो बता दो। अब जो आपका दोस्त है जिसका इशू हो, उसको आप लोग फिर मैनेज करिए अपने हिसाब से। ठीक है, 500 रुपया न्यूनतम है। कई ऐसे लोग हैं जो 1000 या 2000 रुपया लेके भी मंथली चलाते हैं। मैंने अपनी तरफ से 500 न्यूनतम रखा है, ताकि इतना तो मैनेज लोग कर ठीक सकते है हैं। सर। सर इतना जिसका तो मैनेज नहीं बिल्कुल हो रहा सर। वे लोग एक एक ट्यूशन पकड़ ले, इंग्लिश इतना मीडियम तो का जो मैनेज 1000 बहुत 1500 आराम से मिलता किया है, जा सकता है भाई, 1 है घंटे ना। पर जो है टाइम दे, बस हो जाएगा, फीस मैनेज हो जाएगी। हम्म चलिए, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा काम आज राजकुमार जी गुलाब जी के प्रतिनिधित्व में हुआ है। और बाकी सारे लोगों ने साथ दिया है। तो ठीक है, एक बेहतर काम होगा, क्योंकि मुझे ना इस बार सिलेक्शन टीजीटी वाले बच्चों का मुझे बस बार बार ये डर लगता है कोई छूट न जाए, कोई छूट न जाए, क्योंकि लंबे समय से गैप हो जाता है, कभी कुछ कभी कुछ। इससे क्या होगा कि कनेक्शन सबका बना रहेगा और चलता रहेगा। सारी चीजें ठीक है।
तो मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया चीज हो गया है सभी के लिए, और ये आप सभी को बहुत हेल्प मिलेगा इससे। स्क्रीनशॉट किसी ने ले लिया था ना? ले लिया था कि जी नहीं? सर, मैंने ले लिया है सर। हाँ, बस तब ठीक है। देखिए सर, आलोक जी भी सर सही मैंने है, सेंड भी मेरी कर तरह दिया लगता है है, सुपर मेरी फास्ट। तरह है, अच्छा, इसलिए विजय मुझसे सहमत लक्ष्मी हो का गए। नाम नहीं लिखा गया है क्या उसमें? विजय लक्ष्मी का नाम देखिए है? नहीं है सर। तो विजय लक्ष्मी बहुत सोच समझ के लग रहा, अभी अपने हस्बैंड से राय वाय लेके फिर आप मैसेज लिख रही हैं विजय लक्ष्मी, सोच समझ के अच्छे से। चलिए कोई बात नहीं है, तो कोई बात नहीं, तो ठीक है भाई। तो मेरे ख्याल से आज हम लोगों ने, अच्छा खाना निकाल रही थी, कोई बात नहीं। तो आप लोग को बहुत सी चीजें जो एलटी ग्रेड की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए भी हमने वो कर दिया, पूरा प्लान बता दिया कि आप लोग अभी कैसे शुरुआत कर दें, और फिर उसके बाद से हम आपको 1 फरवरी से एलटी ग्रेड वालों को मिलेंगे बहुत अच्छे से पूरी प्लानिंग के साथ, ठीक है। और जो आपके यूपी टीजीटी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए एक हमने एंड में क्या प्लान किया है, मंथली बैच का प्लान किया गया है। ये मंथली बैच चलेगा और ये मंथली फीस आप सभी की 500 रुपीज पर मंथ है। आप लोग इसमें इसको दे के जुड़ते रहेंगे। और ये जो है आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, कब से स्टार्ट करें भाई? 23 थर्ड। जनवरी। 23 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा दिन है, माँ सरस्वती का दिन है, बसंत पंचमी से। सर आपको इसमें एक वो करना चाहिए सर, क्या? आपको अपने ऐप में सर वो जो ऑटो पे होता है वो वाला एक्टिव कर देना चाहिए, वही ताकि वही करेंगे। वो 1 मंथ के लिए जो है उसमें रहेगा। बैच है आपसे तो ऑटो पे हो जाएगा, जैसे अन्य हाँ, चीजें हो हम ये जाती हैं। लफड़ा पालना नहीं चाहते 500 वाला, ये वहीं पे रहेगा। जो लोग जुड़ना मैं चाहेगा, आपका अकाउंट नंबर ही पूछने जा रही थी सर। नहीं वही नहीं अच्छा अकाउंट है, ऑटो नंबर पे कर नहीं, देंगे तो। वो अब ऐप वाला बेस्ट है, ऐप हाँ, वाले पे जैसे ही कि रहेगा, हॉटस्टार वहीं से वगैरह में आप होता है लोग सर, हम्म मेरा कट जाता है, मैं देखता हूँ हर बार, जिसको तो अपने आप जुड़ना ही है हो वहीं से पे करेगा, वहीं से कट जाएगा, और हमारा भी टेंशन खत्म हो जाएगा, है ना? तो आप हमें भी लोग, आप लोग धन्यवाद दीजिए सर को, हमने जो है राजी कर लिया आप लोगों के लिए, हाँ मुझे मैंने लगता सोचा था तो नहीं नहीं था, लेकिन ये है कि एक्चुअली राजकुमार जी बहुत दिनों से बार बार कह रहे थे, और मेरे पास मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कैसे मदद करूं, मतलब किस तरह से कोई बैच स्टार्ट किया जाए, क्योंकि पूरा बैच मैं नया नहीं स्टार्ट कर पा रहा था, उसमें फिर बड़ी दिक्कत आ रही थी। मंथली टाइप वाला है, इसमें कोई उस तरह का प्रेशर भी नहीं है, और ये एक तरह से रिवीजन बैच रहेगा। तो इसमें हम बहुत अच्छे से चीजों को करते रहेंगे। आपको टॉपिक वगैरह हम पहले ही बता देंगे कि आज आज का ये टॉपिक है, आप लोग उस टॉपिक पे पढ़ के आ पा रहे हैं तो भी ठीक है, नहीं आ पा रहे हैं तो भी ठीक है, हम आपको डिस्कशन करेंगे और जो भी कराना होगा बेस्ट पॉसिबल तरीके से उस पर कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, सभी को गुड नाइट। ऑनलाइन पेमेंट का चलो कोई नहीं, कोशिश करना हो जाएगा, दूसरे से करवा लेना। चलो अभी सभी को गुड नाइट, मिलते हैं। सभी लोग तैयारी अपना शुरू कर दे अपने अपने हिसाब से। थैंक यू सर।